So today is lecture 2 of Ancient Indian History GS, lecture number 2, Ancient Indian History GS. This we are doing. So in last class we were discussing about the timeline in Ancient Indian History. So we are going to continue from the same part. So in last class I have discussed, okay, the timeline in which I have discussed the timeline of Stone Ages, Indus Valley Civilization, Vedic culture we have already discussed. Then we have discussed Mahajanpada era, okay, and then we have also discussed about the Mauryan period. Then we have discussed about the later Mauryan phase, and this later Mauryan phase extends from 200 BC to 300 AD. This we have discussed, and this is a general timeline. This period is approximately about a period of 500 years. ये लगभग 500 years का time period है. Okay, and why this Later-Mauryan phase is important? इसके कई सारे factors हैं that I will discuss later. Why this phase is important? One reason is that external invasions took place here. Okay, इसके पहले भी external invasion है, but here the set of external invasion is what? ISPK, Indo-Greek Shakas, Pehlavas and Kushanas. और ये एक्सटर्नल इन्वेजन्स क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज यहाँ पे जो एक्सटर्नल इन्वेजन्स है इसमें इन्वेडर्स कम टू इंडिया एंड दे आर इंडियनाइज्ड, दे बिकम लोकल इंडियन रूलर्स एंड दैट इज व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट. दूसरी बात क्या है कि देयर आर लोकल रूलर्स आल्सो इन दिस फेज एंड द सेट ऑफ लोकल रूलर्स, इंपॉर्टेंट लोकल रूलर्स जिनके बारे में हमने कल बात किया था, दे वर द सुंग, कण्व एंड सातवाहना डायनेस्टी रूलर्स. सुंग, कण्व एंड सातवाहना dynasty rulers. Okay, so this we have discussed. And Satavahanas were basically what? Okay, so Satavahanas were ruling Deccan region. Satavahanas were ruling Deccan region. Okay. Now, after this later Mauryan phase, the next phase is the phase of Gupta rulers. The phase of Gupta rulers, यानी कि Gupta era or Gupta phase, Gupta age. Gupta phase or Gupta age. So here there are imperial Guptas. It means that one political power in North India, ठीक है, इसको हम कह सकते हैं, ठीक है, ऑल इंडिया, ठीक है, बट देर आर सम लिमिटेशंस ऑफ दैट, ठीक है. इनके सारे रूलर्स ने ऑल इंडिया टेरिटरीज पे कंट्रोल नहीं किया था, बट येट वी आर कॉलिंग देम एज इंपीरियल गुप्तास. सो गुप्तास वर रूलिंग मोस्ट ऑफ द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्रीज और टेरिटरीज. और ये गुप्ता रूलर्स थे, दे वर अर्लियर फ्यूडेटरीज ऑफ कुशानास. तो अबाउट कुशानास वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट कुशानास जो थे दे बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ एक्सटर्नल इन्वेडर्स. जो ये वाला ग्रुप था ISP के, इसमें आता ना कुशानास का नाम. ओके, तो गुप्तास वर द फ्यूडेटरीज ऑफ द कुशानास. ठीक है ना, फ्यूडेटरीज क्या होते हैं दैट टू आई विल डिस्कस लेटर. अब इसके बाद आ जाओ, ठीक है, देयर इज अनदर सेट ऑफ इंपॉर्टेंट रूलर व्हेन गुप्तास वर रूलिंग. ओके, अ सेट ऑफ रूलर वाज रूलिंग in Deccan region, that is Vakatakas. ठीक है, तो Vakatakas were also ruling during the same time period. Guptas and Vakatakas. टाइम पीरियड क्या होगा गुप्तास का? तो मान लेते हैं 300 to 500 AD और 550 AD. ठीक है, दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ द गुप्ता रूलर्स इन इंडिया. ओके, नाउ अब आपने सीक्वेंस समझा. लेटर मॉडर्न फेज 200 BC to 300 AD, गुप्ता पीरियड 300 AD to 500 AD और 550 AD. Now let's come to the next phase. तो गुप्ता के बाद जो अगला फेज है that is called पोस्ट गुप्ता. ठीक है, पोस्ट गुप्ता फेज और पोस्ट गुप्ता एरा. Why we are calling it पोस्ट गुप्ता फेज? पोस्ट गुप्ता फेज कहने के पीछे क्या है? The same reason that for this जिसके लिए हमने later Mauryan phase word use किया था. It means there are so many dynasties but none of them can be said to be, ठीक है, द मोस्ट प्रोमिनेंट. हालांकि यस देयर आर प्रोमिनेंट डायनेस्टीज बट वो ऑल इंडिया वाला है ना कॉन्सेप्ट नहीं अप्लाई कर सकते. दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग दिस वर्ड पोस्ट गुप्ता डायनेस्टी. टाइम पीरियड क्या है पोस्ट गुप्ता का? तो 500 और 550 AD आप चूज कर सकते हो, और इसके बाद इसको आप ले जा सकते हो 700 और 750 AD तक. दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ पोस्ट गुप्ता. अगेन दिस इज अ जनरल टाइमलाइन, दिस नॉट accurate timeline, so we can understand like this कि ये है post Gupta period. अब इस post Gupta phase में what do we see is that there are
मेनी रूलर्स, बहुत सारे रूलर्स हैं। जैसे एक जो सबसे इंपॉर्टेंट सेट ऑफ रूलर्स है, क्लासेस में मैं इसके बारे में डिटेल से बताऊंगा, तो आई एम जस्ट मेंशनिंग द नेम। सबके टाइम पीरियड यहाँ मैं नहीं डिस्कस करूंगा। जैसे यहाँ पे एक डायनेस्टी है दैट इज कॉल्ड वर्धन डायनेस्टी, वर्धन डायनेस्टी, ठीक है ना, ठीक है। पुष्यभूति डायनेस्टी, पुष्यभूतीज, वर्धन डायनेस्टी, पुष्यभूतीज और वर्धन डायनेस्टी। तो इनके बारे में हमें पढ़ना है। बेसिकली यहाँ पे वेरी करता है टाइम पीरियड, तो इनका टाइम पीरियड है 6 to 7 सेंचुरी एडी। ओके, सो दे वर वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सेट ऑफ रूलर्स। इन द सेम वे एक दूसरा जो इंपॉर्टेंट सेट ऑफ रूलर है दैट इज मैत्रेक्स। तो दिस इज वन रूलर जिसके बारे में हमें पढ़ना है। दूसरा इंपॉर्टेंट सेट ऑफ रूलर इज मैट्रिक्स, जिसके बारे में हम क्लास में डिस्कस करेंगे। मैट्रिक्स, ठीक है, मैट्रिक्स दे वर कंट्रोलिंग सम पार्ट्स ऑफ द वेस्टर्न इंडिया, ठीक है। और इनका सबसे इंपॉर्टेंट रूलर था एक, द नेम ऑफ दैट रूलर वाज ध्रुवसेन फर्स्ट। सो मैट्रिक्स के बारे में भी हमें पढ़ना है, ठीक है। सौराष्ट्र गुजरात रीजन से रूल करते थे, वल्लभी वाज देयर कैपिटल, ठीक है ना। एंड द थर्ड इंपॉर्टेंट सेट ऑफ रूलर हियर इज मौखरीज, ठीक है ना। मौखरीज के बारे में भी पढ़ना है। तो एक और रूलर ग्रुप है दैट इज कॉल्ड मौखरीज, ओके, मौखरीज, ठीक है। ये सब पोस्ट गुप्ता फेज में इनको हम इंक्लूड करेंगे। मौखरीज वे रूलिंग इन 6 सेंचुरी एडी, ये 6 सेंचुरी एडी में रूल कर रहे थे। मैट्रिक्स का भी टाइम पीरियड यही है, 6 to 7 सेंचुरी एडी। मौखरीज वे रूलिंग इन 6 सेंचुरी एडी, 6 सेंचुरी एडी में ये रूल कर रहे थे, ठीक है। वेस्टर्न यूपी के कुछ एरियाज पे रूल करते थे, पर्टिकुलरली जो सबसे इंपॉर्टेंट एरिया जहां मौखरीज रूल करते थे दैट इज कन्नौज, ठीक है ना। तो इसके बारे में भी जानना है। एट द सेम टाइम व्हाट वी सी देयर आर इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स इन दिस फेज इन साउथ इंडिया आल्सो। तो एक तो दक्कन रीजन में देखो, दक्कन रीजन में मैंने एक रूलर बताया था सातवाहनास, ठीक है ना, सुंग कण्व सातवाहना, पहले मैंने बताया लेटर मौर्यन फेज में। तो अब क्या देखते हैं कि दक्कन रीजन में वाकाटकास जो है ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड, जैसे लेटर मॉडर्न फेज में क्या है, सुंग कण्व सातवाहना, तो सातवाहनास वर कंट्रोलिंग दक्कन। बट जब हम गुप्ता पीरियड में आते हैं तो गुप्ताज वर रूलिंग नॉर्थ, तो दक्कन पार्ट वाज रूल्ड एट दिस टाइम बाय वाकाटकास, जिनके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। वाकाटकास गुप्ता पीरियड में ये दक्कन को रूल कर रहा है। फिर जब हम आगे बढ़ते हैं तो चालुक्यास कम, ठीक है, चालुक्यास यहाँ आ जाते हैं, है ना। चालुक्यास की डिफरेंट ब्रांचेस हैं बट चालुक्यास कंट्रोल द दक्कन रीजन also. तो during this post Gupta era there are important developments in the Deccan and the South India region. अभी ये चीजें थोड़ी आपको बेहतर ढंग से समझ में नहीं आ रही होंगी, मैप पे अभी मैं बताऊंगा बहुत सारी चीजें, तो आप इस चीजों को रिलेट कर पाओगे। दक्कन और साउथ इंडिया में इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हो रहे थे। जब हम साउथ इंडिया की बात कर रहे हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट फार साउथ। अभी मैं आपको अगले टॉपिक में ये सारी चीजें रिलेट करके बताऊंगा। हम फार साउथ की बात करें तो दक्कन में यहाँ पे 6 to 8 सेंचुरी एडी में, अगेन ये पोस्ट गुप्ता फेज है, 6 to 8 सेंचुरी एडी में वी सी चालुक्यंस, हियर हु वर रूलिंग, चालुक्यंस वर रूलिंग। तो चालुक्यंस के बारे में भी हमें पढ़ना है, ठीक है, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसी तरह से बिट इन द फार साउथ, ठीक है, पांड्याज एंड पल्लवाज वर रूलिंग, ठीक है। तो जब हम फार साउथ में जाते हैं तो ये पल्लवाज वर रूलिंग एंड पांड्याज वर रूलिंग, पल्लवाज पांड्याज दे वर रूलिंग। पल्लवास का टाइम पीरियड अगर हम देखें तो 6 to 9 सेंचुरी एडी है, ठीक है। पांड्यास का टाइम पीरियड अगर पांड्यास को देखें तो पांड्यास के भी डिफरेंट ब्रांचेस हैं, ठीक है ना। पांड्यास दो फेजेस, दो इंपॉर्टेंट फेजेस हैं इनके रूल के। फर्स्ट फेज इज बिटवीन 6 to 9 सेंचुरी एडी और दूसरा फेज जो इनके रूल का है दैट इज बिटवीन 12 to 14 सेंचुरी एडी। सो पांड्यास हैड टू फेजेस, दो फेजेस में ये रूल करते हैं, ठीक है। पहला फेज जो है दैट इज ओके from 6 to mid 9th century AD, from 6 to mid 9th century AD, और second phase is mid 12th to mid 14th century AD, mid 12th to mid 14th century AD, ठीक है। यहाँ अभी टाइम पीरियड को बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना, क्लास में जब मैं इवेंट्स बताऊंगा तो आप बहुत सारी चीजें हैं जिससे आसानी से कोरिलेट कर पाओगे। यहाँ सिंपली ये समझो कि पोस्ट गुप्ता एम्पायर में कौन कौन से टॉपिक्स हम पढ़ रहे हैं, इतना सा है। तो कौन से टॉपिक्स पढ़ रहे हैं पोस्ट गुप्ता में, तो वर्धन डायनेस्टी को हम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। फिर हमने क्या देखा कि चालुक्यंस को दक्कन में पढ़ रहे हैं। अब हम साउथ फार साउथ में जा रहे हैं तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज क्या है, पल्लवाज हैं, पांड्याज हैं, ठीक है। इसी तरह से एक और इंपॉर्टेंट रूलर्स है फार साउथ में दैट इज कॉल्ड चोलास, चोलास। तो चोलास का भी टू फेजेस है, ठीक है, जिसमें सेकेंड फेज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज।
दो सेकेंड फेज ऑफ चोला रूल है दैट इज कॉल्ड द इंपीरियल फेज ऑफ चोलास। तो ये भी एक फार साउथ में बहुत ही इंपॉर्टेंट डायनेस्टी है, इंपीरियल फेज ऑफ चोलास, एंड दैट इज 9th सेंचुरी टू मिड यू कैन हाँ मिड 13th सेंचुरी एडी, ठीक है, 9th सेंचुरी टू मिड 13th सेंचुरी एडी, ठीक है, दैट इज द इंपीरियल फेज ऑफ चोलास, ठीक है। चोलास इसके पहले भी है, बट चोलास की जितनी सिग्निफिकेंट अचीवमेंट्स हैं, ऑल दीज सिग्निफिकेंट अचीवमेंट्स बिलोंग टू दिस फेज एंड दैट इज कॉल्ड द इंपीरियल फेज ऑफ चोलास। वैसे तो चोलास का मेंशन अशोका के इंस्क्रिप्शंस में भी मिलता है ना। तो अगर उस टाइम से अगर हम चोला के एग्जिस्टेंस को काउंट करें तो चोलास बिकेम वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रूलिंग डायनेस्टी इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में सबसे लॉन्गेस्ट रूलिंग डायनेस्टी हो जाता है, गॉट इट। बट जो चोलास की सबसे इंपॉर्टेंट अचीवमेंट्स है, ऑल दीज इंपॉर्टेंट अचीवमेंट्स बिलोंग टू विच फेज, 9 टू 13 सेंचुरी एडी, ठीक है, 13 सेंचुरी एडी यू कैन से दिस, 9 टू 13 सेंचुरी एडी भी लिख सकते हो। तो ये सारे डायनेस्टीज हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे डायनेस्टीज हैं, ठीक है, गंग डायनेस्टी और ऐसे बहुत सारे डायनेस्टीज हैं। तो अभी एग्जाम की नीड क्या है ये आप समझो। अभी एग्जाम की नीड क्या है कि एंशिएंट इंडिया में जितनी भी रूलिंग डायनेस्टीज हैं, ठीक है ना, जैसे एक तो होता है कोर प्रिंसिपल, ठीक है, जो हमेशा चर्चा में रहता है, उसके बारे में तो आपको जानना ही जानना है। और एक बड़ी लिमिटेशन क्या है हमारी कि व्हेनेवर वी आर रीडिंग एनी रूलिंग डायनेस्टी, जब भी हम किसी रूलिंग डायनेस्टी को रूल कर रहे होते हैं, आप आमतौर पे देखो जो आपकी प्रिपरेशन होगी, अगर आपने पहले से एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रखा है तो सबसे ज्यादा किस पार्ट को आपने इग्नोर किया है? साउथ इंडिया की हिस्ट्री को इग्नोर किया है, डेक्कन रीजन की हिस्ट्री को इग्नोर किया है। आप खुद से इस चीज को पूछ सकते हो कि मैंने अगर एंशिएंट इंडिया हिस्ट्री पढ़ी तो मैंने ज्यादा अशोक को पढ़ा, ज्यादा समुद्रगुप्त को पढ़ा, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक कल्चर, बुद्धिज्म, जैनिज्म, ये इस पे ज्यादा आपका फोकस है, ज्यादा ओरिएंटेशन है। तो आपने क्या नहीं पढ़ा, ठीक है ना, तो चालुक्यन, सोलास, ठीक है, या फिर जो ट्रिपाटाइट स्ट्रगल है, पालास, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, गंगा डायनेस्टी, काकतीय डायनेस्टी, इन सब एरियाज पे आपने फोकस नहीं किया। तो करना क्या है कि रूलिंग डायनेस्टीज में, ठीक है, एक तो होता है इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसके बाद भी क्या है कि those important dynasties in Deccan region in South India, ठीक है, we all should have a basic understanding of all those dynasties, ठीक है, कि basic understanding का मतलब कि chronological order, कि कौन कौन सी डायनेस्टीज किस एरिया में रूल कर रही है, क्या वो साइमल्टेनियसली रूल कर रही है या, ठीक है, उनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या है, और सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज उनके इंपॉर्टेंट रूलर्स क्या है, और इसके बाद उनका सिग्निफिकेंट कल्चरल अचीवमेंट क्या है। सो दैट इज एन इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ योर एग्जामिनेशन, ठीक है ना। अभी के हिसाब से अगर मैं पॉलिटिकल हिस्ट्री की बात करूं तो पॉलिटिकल हिस्ट्री में जो मैंने कहा कि ये जो रूलिंग डायनेस्टीज है, यहाँ ध्यान देना है इंपॉर्टेंट रूलर्स कौन से हैं, इंपॉर्टेंट एरियाज कौन सा रूल कर रहे हैं, और अगर पॉसिबल हो तो उन इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज को पढ़ते हुए कोशिश ये करनी है कि मैप पे, है ना, द एरियाज विच दे वर रूलिंग, इसको थोड़ा सा देखना है। साथ ही साथ इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन उनका क्या है, ठीक है, आर्ट एंड कल्चर में उनका कंट्रीब्यूशन क्या है, म्यूजिक, लिटरेचर, साइंस, टेक्नोलॉजी, ट्रेड एंड कॉमर्स, ये वाले एस्पेक्ट पे ज्यादा फोकस करना है। एंड इफ यू लुक एट द क्वेश्चंस यू विल फाइंड दैट द क्वेश्चंस आर कमिंग फ्रॉम द सेम एरियाज, ठीक है ना। एंड फॉर दिस which book is sufficient which can give us sufficient information, तो दैट इज, अगर आपने ढक्कन और साउथ इंडिया के लिए आर एस शर्मा की 11th क्लास एनसीईआरटी को ठीक ढंग से पढ़ा है। ठीक ढंग से पढ़ना इन द सेंस कि वी विल रीड द बुक, और कई बार बुक में कुछ डॉट्स कनेक्ट नहीं हो पाते हैं व्हेन यू आर रीडिंग एनसीईआरटी बुक्स, ठीक है ना, बिकॉज दोज बुक्स आर रिटन इन अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव मैनर। तो एट मेनी टाइम्स यू विल फाइंड दैट कुछ चीजें हैं जो वहाँ कंप्लीट नहीं हो पा रही है, ठीक है। तो आपने थीम तो देख लिया वहाँ की, कौन सा थीम दिया हुआ है, सो दैट थीम इज इंपॉर्टेंट। एंड द डॉट्स विच आर नॉट वेल कनेक्टेड, उसके लिए हम किस चीज की हेल्प ले सकते हैं, इंटरनेट की हेल्प कर ले सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी कोचिंग इंस्टीट्यूशंस और इन लोगों ने तो सारा कंटेंट अपलोड कर ही रखा है इंटरनेट पे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ रेफरेंस हमें मिलेगा, ठीक है, और उससे हम अपने मतलब उस ग्रे एरियाज को कवर कर सकते हैं। सो दिस इज द राइट वे टू प्रिपेयर फॉर द एंशिएंट मिडिवल एंड कल्चर, ओके। तो अभी और भी चीजें हैं, दिस इज अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग। जैसे एक और वर्ड है मेगालिथिक कल्चर, ठीक है ना, मेगालिथिक। जैसे मैंने आपको पैलेलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक तो बताया था, बट देयर इज अनदर टर्म दैट इज मेगालिथिक कल्चर्स इन इंडिया, मेगालिथिक कल्चर्स इन इंडिया। तो मेगालिथिक कल्चर्स देखो नॉर्थ इंडिया में भी हैं, बट इन साउथ इंडिया दे आर मोर प्रोमिनेंट, ठीक है ना। तो साउथ इंडिया में जो डेवलपमेंट है, जैसे नॉर्थ इंडिया में जो हमने डेवलपमेंट देखा था उसका पैटर्न क्या था, द पैटर्न वाज लाइक दिस, Paleolithic, Mesolithic, Neolithic, Chalcolithic, then Indus Valley Civilization was a part of it.
और इसके बाद वैदिक कल्चर और महाजनपद एरा, ऐसे हम बढ़ते चले गए थे. बट व्हेन वी आर लुकिंग हियर, ठीक है, इन साउथ इंडिया, सो द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग इज, ठीक है, साउथ इंडिया में जब हम आते हैं तो पैटर्न क्या आ जाता है, पैटर्न इज दैट, ठीक है, कि नियोलिथिक एज हियर इज सक्सीडेड बाय द मेगालिथिक एज. नियोलिथिक एज को सक्सीड कौन करता है, मेगालिथिक एज. और मेगालिथिक का मतलब मैं बताऊंगा, मेगा मीन्स बिग, है ना, और लिथोस मीन्स स्टोन, यानी बिग पीसेस ऑफ स्टोन. तो बिग पीसेस ऑफ स्टोन क्यों कह रहे हैं, बिकॉज द पीपल विल बरी द डेड वंस, ठीक है, और क्या करते थे कि आफ्टर बरीइंग देम दे विल कवर, ओके, द ग्रेव्स विद द बिग पीसेस ऑफ स्टोन्स दैट वर अरेंज्ड इन डिफरेंट मैनर, ठीक है, वो हम क्लास में डिस्कस करेंगे. उसके कई सारे टाइप्स होते हैं, मेगालिथिक बरियल्स उनको हम बोलते हैं, और उनके कई सारे टाइप्स होते हैं. तो उन ग्रेव्स के नेचर और पैटर्न के बेसिस पे हमने उसको क्या कह दिया, मेगालिथिक कल्चर कह दिया, इतनी सी बात है. और वो ग्रेव्स क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दैट ग्रेव कंटेंट सम ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, उस ग्रेव में कुछ ग्रेव ऑब्जेक्ट्स मिले हैं, जैसे मान लो कि पॉटरी मिल गई या कुछ भी ऐसा, ठीक है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दोज ग्रेव ऑब्जेक्ट्स, जो ग्रेव में ऑब्जेक्ट्स मिले हैं अपार्ट फ्रॉम द स्केलेटन, स्केलेटन के अलावा, तो लुकिंग एट दोज ऑब्जेक्ट्स वी कैन रिकंस्ट्रक्ट द सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक, ओके, एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ दैट पीरियड. तो वो बहुत हेल्प करता है. दैट इज लाइक आवर आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस, वो हमारे आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस की तरह है. एंड दैट्स व्हाई वी कॉल द कल्चरल फेज एज द मेगालिथिक कल्चरल फेज. तो in South India, the megalithic cultural phase extends from 1200 BC to 300 BC. South India में megalithic cultural phase extends from 1200 BC to 300 BC. ये इसका एक्सटेंशन है. अच्छा, जब आप नॉर्थ में आते हो तो मेगालिथिक कल्चरल फेज का क्या है एक्सटेंशन, साउथ में तो हमने 1200 टू 300 BC कहा, लेकिन इस टाइम में क्या चल रहा है नॉर्थ में, वैदिक पीरियड 1500 टू 600, और वैदिक पीरियड के बाद क्या चल रहा है, महाजनपद एरा 600 टू 300 BC, और यहाँ पे क्या है, मेगालिथिक कल्चरल फेज है, ठीक है. तो ये मेगालिथिक कल्चरल फेज भी हमको देखना है, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है. फिर हम इसमें एक और टॉपिक पढ़ेंगे, ऐड करेंगे, और वो क्या होगा, संगम एज. संगम एज, ठीक है ना. तो संगम क्या है, बेसिकली जो असेंबली ऑफ पोएट्स है, दैट इज कॉल्ड संगम. और इसमें संगम लिटरेचर इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट. तो संगम लिटरेचर जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ संगम लिटरेचर पढ़ेंगे. देन वी विल रीड अबाउट द चेराज, पांड्याज, चोलाज, चेराज, पांड्याज, चोलाज, इन सब के बारे में पढ़ेंगे. आई एम नॉट मेंशनिंग द टाइमलाइन हियर, यहाँ पे सबके पार्टिकुलर टाइमलाइन नहीं मेंशन कर रहा हूँ, क्योंकि क्लास में जब मैं पढ़ाऊंगा तो वो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, ठीक है ना. चेराज, चोलाज, पांड्याज, और इसके बाद और भी देखा था आपने, दक्कन रीजन में चालुक्यास को देखा था, ठीक है, पांड्यास को देखा था. तो देयर आर सो मेनी डायनेस्टीज दैट वी नीड टू स्टडी. फिर हमें ये भी समझना है कि पार्टिकुलरली दक्कन की हिस्ट्री क्यों इंपॉर्टेंट है, दक्कन कैसे कल्चरल ब्रिज था बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है, कौन से कल्चरल एलिमेंट्स नॉर्थ से साउथ ट्रांसफर हुए तो किस रूप में हुए. सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू स्टडी. आर्किटेक्चर भी है, आर्किटेक्चर का अपना एक इन्फ्लुएंस होगा. रिलीजन्स हैं, आपको पता है कि लोग आएंगे जाएंगे मिलेंगे एक दूसरे से, तो उससे कल्चरल एक्सचेंज होगा और तमाम तरह की चीजें होंगी. सो दैट टू वी विल डिस्कस इन आवर क्लासेस. नाउ हैव यू गॉट सम आइडिया, दिस इज नॉट कंप्लीट टॉपिक्स दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस. अभी मैंने वो ब्रेक डाउन नहीं किया कंप्लीट टॉपिक का, एक एक टॉपिक बताऊंगा तो एटलीस्ट 2-3 लेक्चर लग जाएंगे ये बताने में कि मैं कितना बताने वाला हूँ. तो वो मैंने रोका है अभी, ठीक है, क्योंकि इसमें अभी आर्ट एंड कल्चर है, आर्ट के बहुत सारे इश्यूज हैं, स्कल्पचर है, आर्किटेक्चर है. तो अब बेसिक आइडिया, जनरल टाइमलाइन तो आपके दिमाग में आ गया ना, ठीक है, कि एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में स्टोन एज, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक पीरियड, अब वो क्रोनोलॉजी दिमाग में बैठ गई. महाजनपद एरा, बुद्धिज्म, जैनिज्म, मौर्यन पीरियड, लेटर मौर्यन पीरियड, गुप्ता, पोस्ट गुप्ता, ठीक है, वो मेन 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 एम्पायर्स जो है, इसके अलावा भी और सारे बहुत सारे एम्पायर्स है. सो दैट विल डिस्कस इन आवर क्लासेस, ठीक है ना. सो दिस आइडिया यू हैव गॉट. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर सेगमेंट. बट बिफोर स्टार्टिंग दिस सेगमेंट आई विल डिस्कस 2 टॉपिक्स. उसके बाद मैं स्टोन एज में एंटर करूंगा, एंड दैट इज फॉर योर बेसिक अंडरस्टैंडिंग. आई हैव टोल्ड यू अर्लियर that we will cover 2 topics here. Our topic number 1 will be how geographical factors, okay, influence the development of historical incidents, okay, or development of history, development of culture. इसमें geographical factors कैसे important role play करते हैं, this we want to we need to understand. So here one part we are going to discuss is geographical factors. These geographical factors has
profound influence, they had profound influence, ठीक है, on the development of the growth and development of हिस्ट्री इन इंडिया, यानी हिस्ट्री और जोग्राफिकल फैक्टर्स, ठीक है, दोनों में एक लिंकेजेस है एंड वी नीड टू एस्टैब्लिश दैट लिंकेजेस, ठीक है। एंड दिस इज अ मेंस क्वेश्चन आल्सो, आपके जीएस मेंस का भी क्वेश्चन है। दिस वाज आस्क्ड आई होप इन 2023 पूछा गया था पूजा 2023 में, तो आई थिंक दैट ये 2000, मतलब आई एम नॉट वेरी श्योर हियर, थोड़ा मुझे याद नहीं आ रहा है, बट आप लोग एक बार कंफर्म कर लेना, शायद 2023 मेंस का एक क्वेश्चन था, ज्योग्राफिकल फैक्टर्स किस तरह से हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। और जो दूसरा टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो क्या है, टॉपिक नंबर 2, उसके बाद हम एंटर करेंगे हिस्ट्री में, और वो टॉपिक नंबर 2 होगा, ठीक है, सोर्सेज ऑफ हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन, बिकॉज वी आर गोइंग टू रीड हिस्ट्री, तो वो क्या सोर्सेज हैं हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन में के, this we need to understand. So the second topic will be sources of historical information. Okay, so here we will discuss a broad outline, और आगे चल के सोर्सेज ऑफ हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन नए नए फैक्ट्स आते जाएंगे, पूरे पूरे क्लास जितने भी एएमसी की क्लासेस हैं, और उनको आप अपडेट करते रहोगे। मेरी बात समझ गए ना, यहाँ पे एक आउटलाइन आपके दिमाग में डेवलप हो जाएगा। सो द फर्स्ट टॉपिक, ज्योग्राफिकल फैक्टर्स and how they have profound influence on the development of history, this we are going to discuss, ठीक है, कि कैसे ये इन्फ्लुएंस है हिस्ट्री पे इसका। तो देखो, ज्योग्राफिकल फैक्टर्स और इन्फ्लुएंस ऑफ हिस्ट्री, जब भी हम इसकी बात करेंगे, ओके, सम आइडियाज मस्ट स्ट्राइक इन योर माइंड। जैसे आपने बेसिक ज्योग्राफी पढ़ी है, हम ज्योग्राफिकल डिटेल्स पे तो नहीं जाएंगे, बट एक छोटा सा रेफरेंस लेके चलेंगे। जैसे ज्योग्राफिकल फैक्टर्स में एक सबसे बड़ा रोल प्ले करेगा हिमालयास, है कि नहीं? आपको क्या लग रहा है, हिमालयाज ने इंडिया में हिस्टोरिकल और कल्चरल डेवलपमेंट को अफेक्ट किया कि नहीं? विपिन, किया। वेरी सिंपल, हिमालयाज। अच्छा, हिमालयाज के अलावा, ठीक है, और हम आगे बढ़े तो और कौन इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है? तो जैसे दक्कन रीजन जो है ना, दक्कन प्लेट्यू, ठीक है, ये भी हमारे हिस्टोरिकल डेवलपमेंट को कहीं ना कहीं अफेक्ट करेगा, दक्कन प्लेट्यू रीजन, ठीक है ना, तो ये भी हम समझेंगे, ठीक है, जो पेनिनसुलर इंडिया का ही हिस्सा है, ठीक है। और अगर जैसे हम अगर पेनिनसुलर इंडिया की बात करें, वी विल टॉक अबाउट द पेनिनसुलर इंडिया, ठीक है। तो पेनिनसुलर इंडिया में एक तो दक्कन प्लेटू हो गया, दूसरा क्या हो गया, फार साउथ और रिमोट साउथ। आई विल डिस्कस द मीनिंग ऑफ दीज टर्म्स कि फार साउथ क्या होता है, रिमोट साउथ क्या होता है, ठीक है। तो वो कैसे हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स को अफेक्ट करता है, ठीक है। और दूसरी चीज, जब आप पेनिनसुलर इंडिया की बात कर रहे हो तो आप कोस्टल रीजन्स को तो अवॉइड ही नहीं कर सकते, कोस्टल रीजन्स और कोस्टल एरियाज, ठीक है। क्या ये अफेक्ट करेगा हिस्टोरिकल डेवलपमेंट को? ठीक है, वास्को ड गामा कहाँ आया था? कालीकट 1498, ठीक है, जमोरियंस। तो कोस्टल एरियाज के इंपॉर्टेंस को तो हम नेग्लेक्ट कर ही नहीं सकते। फिर अगर हम आगे बढ़े, अगर ज्योग्राफिकल फैक्टर्स में और कुछ चीजों को रिलेट करें, तो नॉर्दर्न प्लेन्स, ठीक है, नॉर्दर्न प्लेन्स, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, ठीक है। रिवर वैली बेसिन्स, रिवर वैली बेसिन्स, ठीक है, दे विल आल्सो प्ले इंपॉर्टेंट रोल। और इसमें इंडो गैंगेटिक रिवर बेसिन, ठीक है, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। जैसे फर्स्ट एम्पायर जिसकी हम बात करते हैं मगध, ठीक है, तो मगध भी यहाँ राइज करता है, तो इंडो गैंगेटिक रिवर वैली, दिस विल आल्सो प्ले इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है ना, दिस विल प्ले इंपॉर्टेंट रोल। Got it? It means natural boundaries. Himalayas is acting like a natural boundaries. मेरी बात समझ गया ना? ईस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स, ये भी क्या है, एक तरह से नेचुरल बाउंड्री है, ठीक है। पेनिनसुलर इंडिया, सी, ओके, अगर हम देखें तो सी इज ऑल्सो एक्टिंग लाइक अ नेचुरल बाउंड्रीज, हिमालयास एक्टिंग लाइक अ नेचुरल बाउंड्रीज। सो नेचुरल बाउंड्रीज प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल, नेचुरल बाउंड्रीज प्ले इंपॉर्टेंट रोल in, okay, shaping the historical and cultural developments of any country. It's not only about India, ये किसी भी country के साथ हो सकता है, they play a very important role. And these natural boundaries which we see in India, they make India a compact geographical unit. ये जो भी natural boundaries आप देख रहे हो, so all these natural boundaries makes India a compact geographical unit. They make India, ये India को क्या बनाते हैं? A compact geographical unit, ठीक है ना? They make India a compact geographical unit.
तो इस जोग्राफिकल यूनिट को समझना है और हिस्ट्री से हमें चीजों को कनेक्ट करके देखना है। और आप ही से मैं आंसर्स पूछूंगा, पॉइंट्स इसमें पूछ सोचना है, मेरी बात समझिए ना। व्हाट वी हैव टू डू इज बिफोर वी कम टू द फैक्ट्स, हम फैक्ट्स पे पहुंचे इसके पहले क्या करना है, कॉन्सेप्ट्स बिल्ड करना है। और जब आप कॉन्सेप्ट्स बिल्ड करते हो तो फैक्ट्स याद करना और फैक्ट्स को लंबे टाइम तक रिटेन करना आसान हो जाता है। ठीक है, दूसरी चीज, जब आप कॉन्सेप्ट्स बिल्ड करोगे तभी तो स्मार्ट गेस यूज कर पाओगे। ठीक है, तो स्मार्ट गेसिंग के लिए भी क्या जरूरी है, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग जरूरी है। तो सबसे पहले तो हम इसी को देखते हैं, हिमालयास को। ओके, लेट्स डिस्कस अबाउट द हिमालयास। ठीक है, हिमालयास की बात करते हैं। ठीक है, हिमालयास। ओके, देखो, अगर आप हिमालयास की बात करते हो यहाँ पे, ठीक है, हिमालय, तो द इट इज ऑल्सो कॉल्ड, ओके, सेंटिनल ऑफ इंडिया, भारत का प्रहरी। राइट दिस, इट इज ऑल्सो कॉल्ड सेंटिनल ऑफ इंडिया, भारत का प्रहरी। ठीक है, ये भी कहते हैं इसको भारत का प्रहरी। इट इज ऑल्सो कॉल्ड सेंटिनल ऑफ इंडिया, भारत का प्रहरी। ठीक है, ग्रेट सेंटिनल ऑफ द नॉर्थ, उत्तर भारत का महान प्रहरी। ओके, तो ये सारे वर्ड्स यूज किए जाते हैं हिमालय के लिए, दैट इट इज द ग्रेट सेंटिनल ऑफ द नॉर्थ, ग्रेट सेंटिनल ऑफ द नॉर्थ। ठीक है, तो व्हेन वी आर कॉलिंग इट सेंटिनल, सो दैट इज फॉर अ पर्टिकुलर रीजन। प्रहरी क्या करता है, सेंटिनल क्या करेगा, हमें प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, प्रोटेक्ट करेगा, जो थ्रेट्स हैं उनसे प्रोटेक्ट करेगा। तो किस तरह के थ्रेट से हिमालय हमें प्रोटेक्ट करता है, दिस वी नीड टू अंडरस्टैंड। तो पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्यों हम इसको सेंटिनल कह रहे हैं, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम कोल्ड एंड ड्राई विंड्स ऑफ साइबेरिया। अगर ये हमें प्रोटेक्ट नहीं करता, ठीक है, तो अगर नॉर्दर्न आर्कटिक विंड से अगर हिमालयाज हमें प्रोटेक्ट नहीं करता, तो हमारी हालत कैसी हो जाती बताओ, तिब्बत प्लेट्यू की तरह हो जाती। ठीक है, तो एग्जैक्टली तो इंडिया में जो रिच वेजिटेशन है, जो मॉनसून्स है, जो प्रॉस्पेरिटी है, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी है, कहीं ना कहीं ये सब कुछ गिफ्ट है हिमालयास का, किसको, इंडिया को। तो हिमालय का नॉर्थ में होना वो सिर्फ प्रोटेक्ट नहीं कर रहा है, वो हमारी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी को भी बढ़ा रहा है, एंड दैट्स लाइक अ गिफ्ट ऑफ हिमालयास टू द इंडिया। ठीक है ना, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इससे हिस्ट्री तो प्रभावित होगी ना, मेरी बात समझो। ठीक है, अगर इंडिया रिच नहीं होता तो सेंट्रल एशिया से सारे के सारे जो ट्राइब्स हैं, न्यूमेरिक ट्राइब्स, वो क्यों भाग के आते हैं इंडिया की तरफ, इंडिया में इतने ज्यादा इन्वेजन्स क्यों हुए, क्योंकि इंडिया के पास नेचुरल रिसोर्सेज थे, और नेचुरल रिसोर्सेज होने के पीछे एक सबसे बड़ा रीजन क्या है, हिमालयाज है। तो यू कैन राइट दिस दैट इट प्रोटेक्ट्स इंडिया फ्रॉम द कोल्ड एंड ड्राई विंड्स ऑफ साइबेरिया। इट प्रोटेक्ट्स इंडिया फ्रॉम द कोल्ड, प्रोटेक्ट्स इंडिया from the cold and dry winds of Siberia. It protects India from the cold and dry winds of Siberia. ठीक है ना? It means protection from northern Arctic winds. ठीक है ना? You can also read this. It means protection from northern Arctic winds. Northern Arctic winds से हमें क्या करता है? ये प्रोटेक्ट करता है. ठीक है? If there was no Himalayas, the condition of India will be the same like the Tibet plateau. ठीक है, ये कोल्ड होता, बैरन होता। ठीक है, इस तरह का वार्म क्लाइमेट हमारे यहाँ नहीं होता। ठीक है ना, तो इंडियन सिविलाइजेशन, राइट, दिस इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज अ गिफ्ट ऑफ हिमालयास। इंडियन सिविलाइजेशन और कल्चर इज अ गिफ्ट ऑफ हिमालयास। इट इज अ गिफ्ट ऑफ हिमालयास। ठीक है ना, इसके बाद आ जाओ अगले पॉइंट पे, हिमालयाज और क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल इसका क्या है कि नेचुरल सेग्रीगेशन, नेचुरल सेग्रीगेशन, और नेचुरल सेग्रीगेशन किसके साथ, नेबरिंग कंट्रीज में, जैसे म्यांमार के साथ, जैसे चाइना के साथ। ठीक है, सो इट ऑल्सो डू व्हाट, नेचुरल सेग्रीगेशन। तो यहां पे भी इसका एक रोल है कि नेचुरल सेग्रीगेशन, नेचुरल सेग्रीगेशन। एग्जाम्पल, नेचुरल सेग्रीगेशन इधर किसके साथ हो गया, चाइना के साथ, और दूसरी तरफ नेचुरल सेग्रीगेशन किसके साथ हो गया, म्यांमार के साथ। ठीक है,
एक चीज नोटिस करो, इंडिया का कल्चर, कस्टम, फूड स्टाइल, ठीक है, ड्रेसिंग स्टाइल, इट इज वेरी यूनिक और नॉट, इट इज वेरी यूनिक एंड डिफरेंट इवन टू द नियरेस्ट नेबर्स, जो हमारे नजदीकी पड़ोसी हैं उनसे भी अलग है हमारा कल्चर, खान पान, वेशभूषा। तो इसके पीछे कहीं ना कहीं कौन रोल प्ले कर रहा है? जोग्राफिकल फैक्टर्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। गॉट इट? इट मीन्स द नेक्स्ट डोर नेबर्स ऑफ इंडिया possess, okay, entirely different civilization and culture, and one important role that is played here is the role of Himalayas in this, ठीक है ना? So India's culture is unique, आप कहते हो ना India's culture is unique, अपने आप में यूनिक है। क्यों यूनिक है? क्योंकि ये हमारे नेक्स्ट डोर नेबर्स के कल्चर से भी क्या है? अलग है, ठीक है। इन दिस सेंस दिस इज यूनिक। सो दिस इज वन पॉइंट, ओके, ये हमने समझा नेचुरल सेग्रीगेशन। अब आ जाओ थर्ड पॉइंट में, और हिमालयास क्या करता है? द थर्ड पॉइंट, ओके, व्हाट हिमालयास डज हियर, ओके। तो देखो, ग्रेट हिमालयन रेंजेस, ओके, आपको पता है द हाइट, एंड वी ऑल नो दैट इट्स कवर्ड विद द स्नोज एंड ग्लेशियर्स। अब आ जाओ हिमालयाज में ओपनिंग्स और द पासेस, ठीक है, ओपनिंग्स और द पासेस इन हिमालयास, ठीक है, ओपनिंग्स और द पासेस, ओपनिंग्स और द पासेस इन हिमालयास, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम दो तरह के ओपनिंग्स की बात करेंगे, विल ऑल्सो टॉक अबाउट द नैरो ओपनिंग्स, ठीक है ना, ओपनिंग्स और द पासेस इन हिमालयास। आर देयर वेरी वाइड ओपनिंग्स और पासेस for the free flow of traffic through Himalayas? No. No wide openings or the passes for the free flow of the traffic. तो ये तो पहली बात हो गई कि no wide openings or the passes, no wide openings or passes for the free flow of traffic, for the free flow of traffic, no wide opening or passes for the free flow of traffic, ठीक है। हाँ, कुछ नैरो पासेस है, there are some narrow passes, yes there are some narrow passes, कुछ narrow passes हैं। The example of these narrow passes are, आप सब लोगों को पता है, for example ज़ेलेप्ला दर्रा, नाथुला दर्रा, जोजिला दर्रा, ठीक है ना, सुना ना आपने, काराकोरम, ओके। सो रेड दिस ज़ेलेप्ला, जोजिला, नाथुला पासेस एक्सेट्रा, ठीक है। और ये जो पासेस हैं ज़ेलेप्ला, जोजिला, नाथुला एक्सेट्रा, कितनी ऊंचाई पे है बताओ? 16 to 17,000 फीट की ऊंचाई पे। और साल का अधिकतर टाइम क्या होता है? दे आर कवर्ड विथ स्नोस, ग्लेशियर्स, ठीक है। तो इस कंडीशन में, ठीक है, अगर ये एक तो नैरो पैसेज है, दूसरा इज इट ओपन थ्रू आउट द ईयर? द आंसर इज नो, सम पार्ट ऑफ द ईयर, साल के कुछ हिस्सों तक ये ओपन रहेगा, इट्स नॉट ओपन थ्रू आउट द ईयर, ठीक है। अधिकतर समय ये क्या हो जाता है? ब्लॉक हो जाता है। तो देखो एक तरह से कितना अच्छा प्रोटेक्शन लाइन हमने बना रखा है कि कुछ नैरो ओपनिंग्स हैं, वो भी 16 टू 17,000 फीट की ऊंचाई पे है, 16 टू 17,000 फीट की ऊंचाई पे है, एंड मोस्ट ऑफ द ईयर, ठीक है, वो क्या होता है? दे आर कवर्ड विथ स्नो, सो दैट नैरो पैसेज रूट इज क्लोज्ड, सो इट्स ओपन ओनली फॉर अ फ्यू मंथ्स, केवल कुछ मंथ्स के लिए ही ओपन होता है, इट्स ओनली ओपन फॉर अ फ्यू मंथ्स। क्लियर? इट्स वेरी इजी, इट्स ओनली ओपन फॉर अ फ्यू मंथ्स, केवल कुछ मंथ्स के लिए ही ये क्या होता है? ओपन रहता है। अब इसके बाद देखो, लिमिटेड कम्युनिकेशन, राइट दिस, दैट्स व्हाई लिमिटेड कम्युनिकेशन इज पॉसिबल, लिमिटेड कम्युनिकेशन इज पॉसिबल। तो अब ये बताओ, लेकिन जो इन्वेडर्स थे, जैसा कि विपिन ने अभी कमेंट में लिखा, आखिर वो आए कैसे, किस रूट से, वो क्या है? तो हिंदू कुश माउंटेन्स, सुलेमान एंड कीर्थर रेंजेस आप जानते हो, जिसमें खैबर, तोची, गोमल, बोलन दर्रे हैं, इससे होके बहुत सारे इन्वेडर्स आए इंडिया में। तो ये भी हमें पता होना चाहिए ना, ठीक है। ये 16-17 हजार फीट की ऊंचाई पे नहीं गए, इनका रूट दूसरा था, तो वो भी देखो, ठीक है, कि रेड दिस, ओके, बट लिमिटेड कम्युनिकेशन इज पॉसिबल। तो कम्युनिकेशन पॉसिबल थ्रू विच रूट? कम्युनिकेशन वाज पॉसिबल थ्रू विच रूट? किस रूट से कम्युनिकेशन पॉसिबल रहा है, ठीक है ना, विच रूट, थ्रू विच रूट द कम्युनिकेशन वाज पॉसिबल, ठीक है ना। तो यू कैन राइट हियर हिंदू कुश माउंटेन्स,
हिंदू कुश माउंटेन्स, ये सब ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा, एक बार रिवाइज कर लेना। और मैंने मैप्स आज ग्रुप में शेयर किए, हैव यू गॉट दिस एंटायर मैप्स ऑफ एनसीईआरटी एंड तमिलनाडु बोर्ड बुक्स, ठीक है। तो उनको क्या करना है, एक तो प्रिंट आउट निकाल लेना है इफ पॉसिबल। दूसरा, जब मैं कोई चैप्टर बताऊं, फॉर एग्जांपल जब मैं इंडस वैली या स्टोन एज बताऊंगा, तो आप देख लो उसमें स्टोन एज से रिलेटेड कौन कौन से मैप्स हैं और उसको थोड़ा रिवाइज करो। इंडस वैली बताऊं तो इंडस वैली से रिलेटेड मैप्स को रिवाइज करो, एंड नाउ रिवीजन विल बी इजियर, क्योंकि वो सारे मैप्स आपके पास एक जगह कंपाइल्ड है, ठीक है ना। तो उससे आपका रिवीजन आसान हो जाएगा। गॉट इट। तो कैसे हो रहा है ये कम्युनिकेशन, सो राइट दिस, ओके, बिटवीन इंडिया एंड सेंट्रल एशियन कंट्रीज, राइट दिस, ओके, बिटवीन इंडिया एंड सेंट्रल एशियन कंट्रीज, इंडिया एंड सेंट्रल एशियन कंट्रीज। अच्छा, इंडिया में जो इन्वेजन्स हुए वो ज्यादातर इन्वेजन्स कहां से थे, सेंट्रल एशियन ट्राइब्स के थे। तो ये वी आर टॉकिंग अबाउट द कम्युनिकेशन बिटवीन इंडिया एंड सेंट्रल एशियन कंट्रीज, ठीक है ना। अब यहां पे लिख लो सुलेमान किरथर हिल्स, हिंदू कुश माउंटेन्स, और फिर नीचे लिखो सुलेमान किरथर हिल्स, सुलेमान किरथर हिल्स, सुलेमान किरथर हिल्स, ये लिखा हमने। और यहाँ कौन कौन से पासेस हैं जिससे सेंट्रल एशियन ट्राइब्स आए इंडिया में, तो रेड दिस खैबर तोची गोमल बोलन, दीज आर द पासेस, खैबर तोची गोमल बोलन, ओके, दैट इज खैबर पास, तोची, गोमल, बोलन, ऑल दीज आर द पासेस, जिससे कि वो मतलब आते सेंट्रल एशियन ट्राइब्स इंडिया में। ट्रेडर्स भी आते हैं, ट्रेडर्स विल आल्सो यूज दिस रूट ना, ओके, इट मींस इन्वेडर्स विल आल्सो कम, पीसफुल इमिग्रेंट्स विल आल्सो कम, ये भी पॉसिबल है, ठीक है, कि कोई आदमी अपनी कंट्री छोड़ के भाग आ रहा हो, अपनी बीवी से परेशान हो गया हो, ठीक है, तो हिंदुस्तान चला है, पीसफुल, उनको हम क्या कहेंगे, पीसफुल इमिग्रेंट्स। ट्रेडर्स भी आ सकते हैं, सब आ सकते हैं। सो बाय यूजिंग दिस रूट कौन लोग आ सकते हैं, इन्वेडर्स आ सकते हैं, पीसफुल इमिग्रेंट्स आ सकते हैं, पीसफुल इमिग्रेंट्स आ सकते हैं, ट्रेडर्स आ सकते हैं, ये सारा रूट फॉलो करके ये लोग आ सकते हैं, इमिग्रेंट्स, पीसफुल इमिग्रेंट्स, ट्रेडर्स, ठीक है, ये सभी लोग आ सकते हैं। तो अब आपको कुछ कुछ पिक्चर क्लियर हो रहा है इन चीजों का, ओके। इट मींस बाय यूजिंग दिस रूट हु केम टू इंडिया, सो वी कैन से that Greeks came to India, Kushanas came to India, Huns came to India, Shakas came to India, Turks came to India, Mongols came to India by using this route. So you can write here that who came to India by using this route. इस रूट को यूज करते हुए इंडिया कौन आ रहा है, तो यू कैन राइट दैट ग्रीक्स, कुशानास, हून्स, ठीक है, शकास, और भी हैं बहुत सारे ग्रुप्स हैं, टर्क्स, अरब्स, ओके, केम टू इंडिया यूजिंग दिस रूट, दे यूज दिस रूट, इस रूट को इन्होंने यूज किया। अब मजेदार बात क्या है कि यहां से पीसफुल इमिग्रेंट्स और ट्रेडर्स के अलावा इन्वेडर्स ऑल्सो के, जो आ रहे थे उनका इंटेंशन ही क्या था कि इंडिया आना है और इंडिया में टेरिटरीज को एनेक्स करना है, दे ऑल्सो केम। और ऐसा एक बार हुआ कि बार बार हुआ, बार बार हुआ, ये प्रोसेस चलता रहा। तो सवाल ये है कि लिमिटेड कम्युनिकेशन इज पॉसिबल एंड स्टिल इंडियन रूलर्स फेल्ड टू स्टॉप दीज फिल्ट्रेशंस। क्यों इंडियन रूलर्स फेल्ड, इसके पीछे रीजन क्या है, बताओ क्या हो सकता है रीजन, ठीक है, दो चीजें हो सकती है, या तो आपके पास रिसोर्स नहीं हो जिससे आप अपने आप को पावरफुल बना के इनको रोक सको, जो ये हम मान नहीं सकते। सब कुछ तो था इंडिया के पास, मिनरल्स था, आयरन था, ठीक है, एवरीथिंग वाज देयर। और दूसरा, ठीक है, आपने कोई एफर्ट ही नहीं किया टू प्रोवाइड एडिक्वेट सेफगार्ड एंड प्रोटेक्शन, ओके, फॉर डिफेंस, ये आपने नहीं किया हो, तो डिफेंस मैकेनिज्म वीकर रहा। और डिफेंस मैकेनिज्म वीकर क्यों रहा, इसके पीछे क्या रीजन होगा, इसके पीछे रीजन ये होगा, देखो जहां पे भी प्रॉस्पेरिटी होती है, ध्यान से समझना इस बात को, ठीक है, वहां पे लोग धीरे धीरे, जैसे इंडिया की कंडीशन और सेंट्रल एशियन ट्राइब्स में कंडीशन बिल्कुल अलग है। इंडिया में नॉर्दर्न प्लेन्स है, अच्छा एग्रीकल्चर है, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है, और इसकी वजह से क्या है, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, कम से कम भोजन वोजन के लिए तो परेशान नहीं होना है ना, फूड शेल्टर दिस इज इजीली अवेलेबल, ठीक है, जैसा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो पहली सिविलाइजेशन है, दैट इज अहिंसक सिविलाइजेशन, ठीक है, देवदत्त पटनायक ने एक किताब बेस पे लिखी है अभी, तो उसमें यूज ऑफ वर्ड अहिंसा इज देयर। सो इट वाज अ पीसफुल सिविलाइजेशन, हम पहले से तो पढ़ते आए हैं,
कि द पीपल वेर नॉट फाइटिंग वॉर्स एंड ऑल दिस, ठीक है ना। तो पीसफुल सिविलाइजेशन इंडिया का। इंडिया के लोग कभी बाहर नहीं गए, दूसरी कंट्रीज में नहीं गए इन्वेड करने के लिए, बट सेंट्रल एशिया से लोग यहाँ पे आए, ठीक है। तो आपके पास जब ज्यादा से ज्यादा प्रॉस्पेरिटी होती है तो धीरे धीरे द पीपल स्टार्ट बिलीविंग इन कल्चर ऑफ सेक्रीफाइस। मेरी बात समझ गया ना। इंडिया में जो भी रिलीजन्स है, अगर हम चारवाका को छोड़ दें, ठीक है, चारवाका प्रोमोट्स व्हाट, अ काइंड ऑफ मेटलिस्टिक फिलोसफी। मेरी बात समझ गया ना। और चारवाक को छोड़कर जितनी भी इंडियन फिलोसफिकल ट्रेडिशंस हैं, ऑल दे प्रोमोट इज व्हाट, कल्चर ऑफ सेक्रीफाइस। जैसे बुद्धिज्म एंड जैनिज्म सेज व्हाट, अपरिग्रह, नॉन पोजिशन, उतना ही जितना आपको जरूरत हो, जरूरत से ज्यादा इकट्ठा नहीं करना है। मेरी बात समझ गया ना। तो इस तरह की चीजें प्रोमोट करी जाती है इंडिया के अधिकतर फिलोसॉफिकल ट्रेडिशंस में। केवल एक अलग है, वो कौन है, चारवाक, ठीक है। ठीक है, उनको कहता है बस एक ही जीवन है, ठीक है, दोबारा मिलने वाला नहीं है, तो ये सब भुलावे में मत पड़ो, ठीक है। इस दुनिया में आए हो तो फिर ठीक है, जम के लाइफ एंजॉय करो, कल के बारे में मत सोचो कल क्या होगा। कोई रिबर्थ वर्थ टाइप की चीजें नहीं होती है, कोई स्वर्ग नर्क नहीं होता है, कोई नर्क नहीं है जिसमें आपके पकौड़े तले जाएंगे, तो डरने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। यावत जीवेत सिखम सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, जब तक जियो सुख से जियो, ठीक है। लोन लेने से मत हिचकिचाओ, पैसा उधार लो, जम के खर्च करो, ठीक है। भस्मीभूतश्च देहस्य पुनरागमनम कुतः, एक बार अगर जीवन खत्म हो गया, ओके, सो देयर इज नो एनी स्कोप फॉर द रीबर्थ। यावत जीवित सकम जीव, अंटिल यू आर अलाइव यू शुड लीव लाइफ हैप्पीली, ठीक है। यू शुड लीव अ लाइफ दैट इज फुल ऑफ कंफर्ट एंड लग्जरी। वंस दिस लाइफ इज एंडेड, देयर इज नो एनी अनदर लाइफ आफ्टर डेथ, ओके। तो मैटरलिस्टिक फिलोसफी को उन्होंने प्रमोट किया, बट बाकी जितनी भी फिलोसफीज है, फॉर एग्जाम्पल इंडिया देयर आर सिक्स फिलोसॉफिकल ट्रेडिशंस, जिसको आप यू से षड दर्शन कहते हो ना। सिक्स, षड मीन्स सिक्स फिलोसॉफिकल ट्रेडिशंस, जिसमें चारवाक, बौद्ध, जैन, सांख्य, योग एक साथ आ जाता है, न्याय वैशेषिक और मीमांसा एंड वेदांत एक साथ आ जाता है। तो चारवाक को छोड़ के रिमेनिंग ऑल प्रोमोट कल्चर ऑफ सेक्रीफाइस। मेरी बात समझ गया ना। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये कल्चर ऑफ सेक्रीफाइस, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी और इन सारी चीजों ने, है ना, हमें डल बना दिया था, सुस्त बना दिया था, इनएक्टिव बना दिया था। हमें लगता था अपने पास तो सब है ही है, कोई दूसरा आएगा हमारे घर में डकैती डालेगा, कोई बात नहीं, मेरी अलमारी से 10 लाख रुपए उठा के ले जाएगा, कोई बात नहीं, मेरे पास 1,000 करोड़ पड़े हैं ब्लैक मनी कहीं और रखा हुआ, ले जाओ 10 लाख, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस भाव में जब आप आ जाओगे तो क्या करोगे, है ना कहीं प्रोटेक्शन मैकेनिज्म आपका क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। सो दिस माइट बी वन रीजन, एंड दैट्स व्हाई वी कैन से दैट रिपीटेडली फॉरेन इन्वेडर्स इन्वेडेड इंडिया। लगातार वो क्या करते रहे, इन्वेड करते रहे ना। कोई ऐसा तो है नहीं कि एक बार इन्वेड किया और रुक गए, दे रिपीटेडली इन्वेडेड इंडिया। अच्छा देखो, जैसे राजस्थान में चले जाओ तो, ठीक है, राजस्थान में प्रॉब्लम क्या था शुरू से। अगर इंडो गैंगेटिक रिवर वैली बेसिन की बात करें या इंडस रिवर बेसिन रीजन की बात करें, झेलम चिनाब, जैसे पंजाब में आ जाओ तो झेलम चिनाब राबी ब्यास सतलज, ठीक है। पंजाब का मतलब ही है कि लैंड ऑफ 5 रिवर्स। मेरी बात समझ गया ना। तो पंजाब इकोनॉमिकली प्रॉस्पर है। अच्छा दूसरी चीज, जब भी इन्वेडर्स आएंगे तो घुसेंगे किधर से बताओ, पंजाब से। तो सबसे ज्यादा लड़ाई किसको फेस करनी पड़ेगी, पंजाब को। दिल्ली पे भी अगर अटैक करना है तो पंजाब होके ही तो आना है ना। मेरी बात समझ गया ना। तो सबसे ज्यादा अगर फ्रीक्वेंट इन्वेजन अगर किसी को फेस करना है तो दैट स्टेट इज पंजाब। वो कौन है, पंजाब है। हैव यू गॉट माय पॉइंट। तो पंजाब में अगर बार बार अटैक होगा, जैसे जितने इंपॉर्टेंट बैटल फील्ड्स हैं, जैसे पानीपत, पानीपत का बैटल कितना इंपॉर्टेंट है, कुरुक्षेत्र, पानीपत, ये सब रीजन क्या है, जैसे ये दिल्ली का बैकयार्ड है, ऐसे समझो। दिल्ली इंपीरियल कैपिटल थी और ये सारे रीजंस क्या है, दिल्ली के बैकयार्ड है। पहले इन्वेजन्स होंगे तो इन्हीं को झेलना पड़ेगा। तो यहाँ के लोग उन इन्वेजन्स से अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे और वो प्रोटेक्ट करने की कोशिश में ये बहादुर हो जाएंगे। मेरी बात समझ गया ना। दे विल बी द फायर्स फाइटर्स। जैसे सिख रेजिमेंट, देखो कितना जलवा है सिख रेजिमेंट का। तो क्यों पंजाब के लोग पावरफुल हुए, उसके पीछे रीजन ये है। अच्छा राजस्थान, राजपूत, ठीक है, एंड राजपूत टेक प्राइड इन द प्रोटेक्शन ऑफ ब्राह्मण्स एंड द काउस। धर्म का रक्षक भी खुद को कहते हैं। दूसरी चीज क्या है ना, वाटर स्कैर्स रीजन, मतलब है तो, ठीक है, इंडो गैंगेटिक रिवर वैली की तरफ फर्टाइल भी नहीं है, तो यहाँ पे स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज होंगी कि नहीं, होंगी ना। और जहां पे भी स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज होंगी, ठीक है,
वहां के लोगों में एक अलग किस्म का जुझारूपन होगा, ठीक है। उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ, उनका करेज, उनकी ब्रेवरी बिल्कुल अलग लेवल की होगी। मेरी बात समझ गया ना, ठीक है। तो राजस्थान के लोगों का जो तेवर है या राजपूतों का जो तेवर है वो अलग है। क्यों है? इसके पीछे भी एक रीजन है। क्योंकि ये क्या रहा है, दिस इज अ रिसोर्स स्कैर्स रीजन, ठीक है। जैसे जो सेंट्रल एशिया से ट्राइब्स आ रहे हैं वो बहुत एग्रेसिव है, ठीक है। आपके साथ चाय पीते पीते कब आपका गला काट देंगे आपको पता नहीं चलेगा। खूब मीठा मीठा बोल रहे हैं, बढ़िया से चाय पार्टी चल रही है, आपकी टी पार्टी चल रही है, और अचानक तलवार से आपका गला काट देंगे, ठीक है। यानी कि उनको छल कपट प्रपंच यूज करने में थोड़ा भी हेजिटेशन नहीं होता है। मेरी बात समझ गए ना। क्यों हेजिटेशन होता है? क्योंकि वो कहां से आए हैं, रिसोर्स स्कैर्स रीजन से। वहां रिसोर्सेस के लिए उनको आपस में ही फाइट करना था। दे देमसेल्व्स आर फाइटिंग अमंग, देयर वाज, इसको हम कहते हैं इंटरवैरिंग ट्राइब्स। सेंट्रल एशिया में ये ट्राइब्स आपस में ही क्या कर रही थी, लड़ रही थी, टू कंट्रोल टू ओवर द रिसोर्सेस। लास्टली वहां से भाग के कहा चले आए, हिंदुस्तान की तरफ चले आए, ठीक है। तो इसीलिए वो स्वभाव से क्या हो गए थे, क्रूएल हो गए थे। मेरी बात समझ गया ना। लेकिन वो क्रुएल्टी आपको राजस्थान के राजपूत में नहीं दिखेगी। वो बहादुर है, बट दे आर द मैन ऑफ द वर्ड्स, ठीक है। व्हाट दे मेक प्रॉमिस दे विल, ओके, उसको क्या करेंगे, उस कमिटमेंट को फुलफिल करने में भी यकीन रखेंगे। इसके पीछे रीजन क्या है, ठीक है। तो एक तो स्कैर्स, मतलब स्कैर्स स्कैसिटी है रिसोर्सेस की। दूसरी तरफ इंडिया का जो कल्चरल ट्रेडिशन है वो किस बात को प्रमोट कर रहा है, कल्चर ऑफ सेक्रीफाइस को प्रमोट कर रहा है। दूसरी चीज, हमारे जो पूरा का पूरा रिलीजन है, उस पूरे के पूरे रिलीजन में किस बात पे फोकस किया गया है, हमारा रिलीजन जो है ना, मोरालिटी और एथिक्स को प्रमोट करता है, ठीक है। इंडियन रिलीजन्स दे प्रमोट व्हाट, मोरालिटी एंड एथिक्स। जैसे आप बुद्धिज्म और जैनिज्म पढ़ोगे तो यू विल गेट मेनी टॉपिक्स फ्रॉम जीएस पेपर 4। आप रामायण की स्टोरी सुनते हो, राम की स्टोरी सुनते हो, दैट इज कॉल्ड मर्यादा पुरुषोत्तम, ठीक है। यानी जिसका एथिक्स पेपर 4 पे पूरा का पूरा कमांड हो, ठीक है। जो क्या है, एक आइडल सन है, एक आइडल हस्बैंड है। हालांकि देखो उसमें क्रिटिसिज्म है, बट स्टिल, ठीक है ना। तो जहां पे भी एक आइडल्स की बात करते हैं तो प्रमोशन ऑफ मोरालिटी एंड द एथिक्स। तो ये सब चीज का कॉम्बिनेशन है कि इंडिया के लोग बहादुर होते हुए भी वैसे क्रूएल और कनिंग नहीं हुए जैसा कि सेंट्रल एशियन ट्राइब्स में देखा गया है। मेरी बात समझ गया ना। इनका कोऑपरेटिव नेचर रहा है, दूसरों को प्रोटेक्ट करने में बिलीव करते। तो देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। गॉट माय पॉइंट, ओके। तो इन्वेडर्स विल कम टू इंडिया, और देखो कुछ चीजों को रिलेट कर रहा है। वो क्या है, देखो अब ये बात तो आपने देखा सुलेमान और कीर्तन रेंजेस का। नाउ लेट्स लुक टू दिस पार्ट, ठीक है। एक और पार्ट को देखते हैं। सपोज इंडिया, और आप आ जाओ इस रीजन में जिसको आप अफगानिस्तान वगैरह कहते हो, ठीक है ना। ठीक है, अफगानिस्तान वाले रीजन को देखते हैं, ओके। तो अफगानिस्तान में देखो, काबुल एंड अफगानिस्तान वैली में हम आ जाते हैं। काबुल एंड अफगानिस्तान वैली, आप बताओ, है ना। इस वैली में ये रिसोर्स स्कार्स रीजन है कि रिसोर्स एबंडेंट रीजन? दिस इज अ रिसोर्स स्कार्स। यहाँ पे क्या है, स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेस है, स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेस है। यहाँ पे जो डेमोग्राफिक कंपोजिशन है, दिस डेमोग्राफिक कंपोजिशन इज मिक्स्ड। ये मिक्स्ड डेमोग्राफिक कंपोजिशन है, ठीक है। मिक्स्ड डेमोग्राफिक कंपोजिशन है। मिक्स्ड डेमोग्राफिक कंपोजिशन क्यों कह रहा है? क्योंकि पॉलिटिकल टेरिटरीज जो इंडिया की है, कब से हम ऐसा डिफाइन करें, बड़ा मुश्किल है, ठीक है। जैसे अगर आप पुराने एपिक्स की बात करोगे जो धर्म ग्रंथों में लिखा गया है, वो तो सीधा सीधा ये कहता है, ठीक है, कि जो हिमालयास, हिमालयास ले लो और इधर सीज ले लो, नॉर्थ में हिमालयास और सीज, इसके बीच का पूरा जो लैंड मास है वो पूरा का पूरा ही क्या है, भारतवर्ष है। मेरी बात समझ गया ना। तो अगर हम उनकी बात देखें तो ये सब का सब क्या था, भारतवर्षी था। लेकिन फिर भी ये पूरे के पूरे रीजन में हम क्या देखते हैं कि अगेन, ओके, डिफरेंट ट्राइब्स विल कम हियर, ठीक है। दोज हु वांट टू इन्वेड इंडिया वो कहाँ आएंगे, अफगानिस्तान, काबुल वैली, इधर आएंगे ना पहले, ठीक है। इंडिया में इन्वेड करने से पहले उनका कैंप कहाँ लगेगा, बताओ, यहीं लगेगा। अफगानिस्तान काबुल में कैंप वैम्प लगेगा, फिर आगे की तैयारी होगी, ठीक है। तो उनका कैंप यहाँ पे लगेगा। यानी कि एक और बात है, अगर आप इंडिया के प्रोटेक्शन को इंश्योर करना चाहते हो तो यू विल हैव टू प्रोटेक्ट, इंश्योर द प्रोटेक्शन ऑफ व्हाट, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर।
नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के प्रोटेक्शन को इंश्योर करना होगा। व्हेन आई विल टीच यू दिल्ली सल्तनत पीरियड एंड मुगल पीरियड, तो मैं बताऊंगा नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर्स के प्रोटेक्शन को इंश्योर करने के लिए क्या किया गया। ब्रिटिश ने नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर्स के प्रोटेक्शन को इंश्योर करने के लिए क्या किया, मेरी बात समझ गए। यानी एंशिएंट इंडिया के बाद जब हम मिडिवल इंडिया में आते हैं, दिल्ली सल्तनत पीरियड में, ठीक है, तो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन सा एफर्ट है, मुगल पीरियड में कौन सा एफर्ट है, और ब्रिटिश पीरियड में कौन से एफर्ट है, ये हमें जानने की जरूरत है। चलो ठीक है, इसके बाद एंटर जब आप करोगे तो कौन सा रीजन आ जाएगा, विच रीजन विल कम, पंजाब। इसके बाद क्या हो गया, पंजाब। ये एक रफ स्केच में ड्रॉ कर रहा हूं, पंजाब आ जाएगा, ठीक है। और पंजाब हियर इज स्टैंडिंग लाइक अ वॉच डॉग ऑफ फ्रीडम एंड सोवरेनिटी इन इंडिया। अगर पंजाब दांव पे है तो हिंदुस्तान की आजादी दांव पे है, हिंदुस्तान की सॉवरेनिटी संप्रभुता दांव पे है। तो पंजाब हियर वाज स्टैंडिंग, पंजाब हियर वाज स्टैंडिंग, पंजाब हियर वाज स्टैंडिंग लाइक अ watchdog of, like a watchdog of freedom and sovereignty in India. Freedom and sovereignty here in India. Punjab here was standing like a watchdog. And Punjab was, okay, frequently attacked by the foreign invaders. They are following this route. Punjab is frequently attacked by the foreign invaders. यहाँ पे क्या है, frequent invasions है पंजाब में, frequent invasions in Punjab. Punjab is frequently attacked by the foreign invaders. ठीक है, अब आप ये बताओ कि पंजाब क्यों फ्रीक्वेंटली अटैक हो रहा है, इसके पीछे रीजन क्या है, रिवर वैली रीजन, रिवर वैली, ठीक है। पंजाब मीन्स व्हाट, लैंड ऑफ 5 रिवर्स, पंजाब मीन्स व्हाट, लैंड ऑफ 5 रिवर्स, ठीक है, सतलज, ब्यास, राबी, चिनाब एंड झेलम। दिस इज द लैंड ऑफ 5 रिवर्स, सतलज, ब्यास, राबी, चिनाब, सतलज, ब्यास, राबी, चिनाब एंड झेलम, लैंड ऑफ 5 रिवर्स। इसका मतलब यहाँ पे क्या है, इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी भी है, इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी भी है। इसके अलावा भी अंदर हम देखेंगे रिवर वैली रीजन्स को, इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी भी है। तो दैट्स व्हाई फॉरेन इन्वेडर्स विल कम टू इन्वेड पंजाब, ठीक है। और चूंकि बार बार आप इन्वेजन्स को आप वो कर रहे हो, ठीक है, तो आप प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करोगे, ऑब्वियसली द सिख विल इमर्ज एज इंपॉर्टेंट फाइटर्स। तो यहाँ पे जो पंजाब में रहने वाली कम्युनिटी है वो क्या हो जाएगी, एक इंपॉर्टेंट फाइटिंग ग्रुप के रूप में वो अपने आप इवॉल्व हो जाएगी, ठीक है। अच्छा बताओ, एक लंबे टाइम तक इंपेरियल कैपिटल कहाँ रहा, दिल्ली रहा। दिल्ली वॉज द इंपेरियल कैपिटल फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, वी ऑल नो। जैसे मान लो कि हम यहाँ पे लिखते हैं दिल्ली, मान लेते हैं दिल्ली, दिल्ली इंपेरियल कैपिटल है लंबे समय तक। तो दिल्ली ही कैपिटल क्यों है, इसके पीछे क्या रीजन है बताओ, दिल्ली कैपिटल क्यों है। पहले इसको हम इंद्रप्रस्थ के नाम से जानते हैं, सो इट वाज अर्लियर नोन एज इंद्रप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ, टुडे इट इज दिल्ली, ठीक है। तो दिल्ली कैपिटल क्यों है, इसका रीजन एक ये है कि इफ इन्वेडर्स विल कम एंड इफ दे वांट टू इन्वेड द इंपेरियल कैपिटल दैट इज दिल्ली, ओके, so they will have to travel long distance in order to complete this invasion. लंबी दूरी तय करनी पड़ेगी ना, ठीक है, इस इन्वेजन को कंप्लीट करने के लिए। तो दे विल हैव टू ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस। इन दिस केस यू विल बी informed early, and when you are early informed then you can make war preparedness, ठीक है। वो अटैक आपके लिए सरप्राइज अटैक नहीं होगा, ठीक है। और आप इंपीरियल कैपिटल को क्या कर सकते हो, फॉरेन इन्वेजन से प्रोटेक्ट कर सकते हो। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यू कैन प्रोटेक्ट इंपीरियल कैपिटल फ्रॉम द फॉरेन इन्वेजन, दिस इज वन थिंग। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, सपोज दिल्ली इज फाइटिंग वॉर, दिल्ली वॉर फाइट कर रहा है, तो वॉर टाइम में एसेंशियल कमोडिटीज और इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या हो जाती है, डिसरप्ट हो जाती है। दिस इज क्वाइट ऑब्वियस, दिल्ली में अगर वॉर होगा तो डिसरप्ट हो जाएगा। तो बेटर क्या है कि वो वॉर दिल्ली में ना होके दिल्ली के बाहर हो जाए, मेरी बात समझ गए ना, क्योंकि दिल्ली क्या है, इंपेरियल कैपिटल है। तो आप देखते हो कि हिस्ट्री में जो इंपॉर्टेंट बैटल ग्राउंड्स हैं, वो इंपॉर्टेंट बैटल ग्राउंड्स कौन है, कुरुक्षेत्र हो गया, पानीपत हो गया, ये सब इंपॉर्टेंट बैटल ग्राउंड्स हैं। तो यही इंपॉर्टेंट बैटल ग्राउंड्स क्यों बने, व्हाई दे बिकेम इंपॉर्टेंट बैटल ग्राउंड्स, सो दैट द वॉर कुड बी फॉट आउटसाइड दिस इंपीरियल कैपिटल, क्योंकि ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज को डिसरप्ट
कर सकता था। तो इंपॉर्टेंट बैटल ग्राउंड कहाँ है? नॉट इन द सेंटर बट इन द पेरिफेरी, इन द बैकयार्ड। एक तो ये रीजन है। थर्ड रीजन पे आते हैं, दिल्ली इंपीरियल कैपिटल क्यों है? तो दिल्ली इंपीरियल कैपिटल इसलिए भी है क्योंकि जब दिल्ली वॉर फाइट करेगी तो बताओ दिल्ली को एसेंशियल कमोडिटीज की जरूरत होगी कि नहीं? दिल्ली के लोगों को फूड सप्लाई चाहिए, दिल्ली के लोगों को मान लो कि वॉर मटेरियल्स चाहिए, बिल्डिंग मटेरियल्स चाहिए, तमाम तरह की चीजों की जरूरत होगी। वो सप्लाई कहां से हो सकती है? बैकयार्ड से हो सकती है। और बैकयार्ड क्या है? दिल्ली इज सिचुएटेड एट द माउथ ऑफ गैंगेटिक रिवर वैली रीजन। तो दिल्ली को ये सारी की सारी सप्लाई क्या हो सकती है? इस बैकयार्ड से। बैकयार्ड, आई एम यूजिंग द वर्ड बैकयार्ड फॉर द नेबरिंग स्टेट्स, ठीक है? जैसे यूपी हो गया, यूनाइटेड प्रोविंस एरिया जिसको कहते हो, इंडो गैंगेटिक रिवर वैली रीजन। तो यहां से बैकयार्ड से दिल्ली को सारी की सारी सप्लाई मिल सकती है, ठीक है? एंड दैट इज व्हाई दिल्ली वाज द इंपीरियल कैपिटल। मेरी बात समझ गया ना? ठीक है। मेनी एक्सटेंसिव बैकग्राउंड्स लाइक पानीपत, okay, were situated around Delhi. It was not Delhi. This is the reason कि अगर इंपॉर्टेंट बैटल हो रहा है तो बैटल हमें कहाँ फाइट कर लेना चाहिए? आसपास के एरियाज में फाइट कर लेना चाहिए। अब आप बताओ, ज्योग्राफिकल फैक्टर्स आर इंस्ट्रूमेंटल इन, ओके, द डेवलपमेंट्स ऑफ हिस्ट्री और नॉट? क्या वो इंस्ट्रूमेंटल है? हाँ। दिल्ली इंपीरियल कैपिटल क्यों है? लड़ाई पानीपत में ही क्यों लड़ी गई? नाउ यू नो दिस, ठीक है? आगे और भी चीजें बताऊंगा, नॉर्दर्न प्लेन्स वगैरह, बट यहाँ पे ये सारी चीजें डिस्कस की है। तो लेट्स डिस्कस वन मोर पार्ट, दैट इज विंध्यन रीजन, विंध्यन माउंटेन्स, ठीक है ना? तो विंध्यन माउंटेन्स, ठीक है। सो अगर हम इफ विल टेक दिस एग्जांपल ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, अगर हम किसका एग्जांपल ले लें? पेनिनसुलर इंडिया, ओके। सो नाउ वी आर टेकिंग द एग्जांपल ऑफ विंध्यन माउंटेन्स, विंध्यन माउंटेन्स, ठीक है? मैं यहाँ पे मैप भी लोकेट कर दूंगा, बट इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट समझने के बाद आप जब मैप देखोगे ना तो आपको चीजें एकदम क्लियर कट नजर आने लगेगी। मेरी बात समझ गया ना? अब जब आप मैप देखोगे तो सुलेमान किर्थर, हिंदू कुश माउंटेन्स, मेरी बात समझ गया ना? ये सब आप देखोगे कि किधर से इन्वेडर्स आए, अफगानिस्तान, काबुल वैली, इंपीरियल कैपिटल दिल्ली, पंजाब का रीजन क्या है? मेरी बात समझ गया ना? तो आपको मैप वो विजिबल होने लगेगा जब आप स्टोरी को समझते हो। इसलिए मैं हिस्ट्री को क्या कहता हूं? हाई स्टोरी, ठीक है? जैसे ही आप स्टोरी को समझते हो, हिस्ट्री से आसान कोई सब्जेक्ट ही नहीं, और एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री से तो वाकई कुछ भी, मतलब इससे ज्यादा आसान नहीं है। बट इट अपीयर्स डिफिकल्ट। हम हिस्ट्री को क्या समझ ले? तो पहले क्या समझो? स्टोरी, फिर समझ में आ जाएगी आपको हिस्ट्री। अगर आपने स्टोरी नहीं समझी, और अमूमन हम क्या करते हैं, इंडिया एक ऐसा देश है जहां हिस्ट्री पढ़ाई जाती है बिना स्टोरी के, ठीक है? फैक्ट्स रटो, फैक्ट्स मीन्स हिस्ट्री। फैक्ट तो जरूरी है ही है, बट फैक्ट अपने आप याद हो जाएंगे, उसको रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं है। और एमसीक्यू हम रिवाइज क्यों करते हैं? इसलिए कि फैक्ट्स याद हो जाए ना, इसीलिए तो क्वेश्चन बैंक बना हुआ है, ठीक है? चलिए, विंध्यन माउंटेन्स, विंध्यन माउंटेन्स इनको देखते हैं, ठीक है? तो देखो, विंध्यन माउंटेन्स का रोल क्या है कि जो इंडिया है, एक तरह से इंडिया को टू पार्ट्स में डिवाइड कर दे रहा है, एक नॉर्थ और दूसरा क्या हो जा रहा है? साउथ, ठीक है? इट डिवाइड्स इंडिया इनटू टू पार्ट्स, वन इज नॉर्थ एंड द सेकंड इज साउथ, ठीक है? एंड दीज विंध्यन माउंटेन्स आल्सो रन हॉरिजॉन्टली। अगर आप इनकी लोकेशन को देखोगे तो ये लोकेशन क्या है? हॉरिजॉन्टल। सो दिस रन हॉरिजॉन्टली अक्रॉस द अरेबियन कोस्ट एंड बे ऑफ बंगाल, ठीक है ना? तो अरेबियन कोस्ट दे रन्स हॉरिजॉन्टली अक्रॉस द अरेबियन कोस्ट एंड बे ऑफ बंगाल रीजन, ठीक है? बे ऑफ बंगाल रीजन, ये जनरल आइडिया मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है? बहुत इसको हम एक्यूरेट भी नहीं कह सकते, ठीक है? फिर ये जो पेनिनसुलर इंडिया है, यहाँ पे आप फिर कंडीशन देखते हो किसकी? वेस्टर्न घाट्स की और ईस्टर्न घाट्स की, ये भी आपको पता है, वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स, ठीक है? आई एम ओनली गिविंग सम हिंट्स, ठीक है ना? यू ऑल आर वेल फैमिलियर अबाउट दीज टॉपिक्स। वेस्टर्न घाट्स, और यहाँ पे हमने क्या लिख दिया? ईस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स, ठीक है? और मैं कुछ वर्ड्स लिखूं, सेंट्रल हाईलैंड्स, समझ पा रहे हैं इसको? सेंट्रल हाईलैंड्स, फॉरेस्ट एरियाज और ये सारी चीजें, ठीक है ना? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? सेंट्रल हाईलैंड्स भी आ जाएगा, राइट दिस, सेंट्रल हाईलैंड्स भी आ जाएगा। अब व्हेन यू विल लुक एट द मैप, इन एरियाज को देखना और समझना, ठीक है? कि जैसे शिवाजी को औरंगजेब माउंटेन रैट क्यों कहता था? शिवाजी की गुरिल्ला वॉरफेयर टैक्टिक्स क्यों थी? मेरी बात समझ गया ना? जब आप इस ज्योग्राफी को समझोगे तो अपने आप समझ जाओगे शिवाजी
गुरिल्ला वॉरफेयर टैक्टिक्स मराठास की इतनी पावरफुल क्यों थी? अपने बड़े बड़े एनिमीज को गुरिल्ला वॉरफेयर टैक्टिक्स से उन्होंने क्या किया? डिफीट किया। मेरी बात समझ गया ना? मराठास की है ये गुरिल्ला वॉरफेयर टेक्निक। तो सिर्फ सेंट्रल हाईलैंड्स, और फिर एक और वर्ड हम यहाँ पे लिख सकते हैं, दैट इज डक्कन प्लेटू रीजन। एक और वर्ड हम लिखते हैं, दैट इज डक्कन प्लेटू रीजन। ये सब लिखा हमने, ठीक है। और टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले कुछ और बेसिक टर्मिनोलॉजीज को समझते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड सम मोर बेसिक टर्मिनोलॉजीज दैट विल मेक आवर कॉन्सेप्ट्स क्लियर। जैसे ओके, यू हैव हर्ड दिस वर्ड दक्कन, आई एम यूजिंग दिस वर्ड दक्कन, ठीक है ना? व्हाट डज इट मीन? तो दक्कन वर्ड जो है ना, ये बना है दक्कना, दक्कना से बना है, एंड दैट मीन्स दक्षिण, एंड दैट मीन्स साउथ। तो ऐसा नहीं कि दक्कन का मतलब कुछ और है और साउथ का मतलब कुछ और है। मेरी बात समझ गए? जब हम यहाँ पे साउथ की बात कर रहे हैं तो दिस इज फार साउथ और रिमोट साउथ, और ये दक्कन रीजन यहां से रिलेटेड हो गया। ओके, तो दक्कन, राइट दिस, ओके, दक्कना। दक्कन वर्ड बना है किस वर्ड से? दक्कना। एंड दक्कना मीन्स व्हाट? दक्कना मीन्स दक्षिण, एंड दक्षिणा मीन्स साउथ। दक्षिणा मीन्स साउथ। इसका मतलब दक्कना मीन्स ऑल्सो व्हाट? दक्कन का मतलब भी क्या है? साउथ, ठीक है। बट जब हम पेनिनसुलर इंडिया में, ठीक है, इस पार्ट की बात करते हैं, सो दिस पार्ट विल बी नोन एज रिमोट साउथ। इसको हम क्या कहेंगे? रिमोट साउथ, ठीक है ना? तो दक्कन वर्ड से कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है? दैट इज रिमोट साउथ, ठीक है। इसके बाद देखो, पेनिनसुलर इंडिया, दक्कन, राइट दिस, दक्कन। दक्कन जब हम कहते हैं तो वी आर स्पेशली रेफरिंग टू द प्लेट्यू रीजन। आप चाहो तो लिख लो दक्कन। When we are saying Deccan, it means we are especially referring to the plateau region, to the plateau region. We are especially referring to the plateau region. Deccan कहने का मतलब ये है कि we are especially referring to the plateau region. Okay. दूसरी चीज, सेंट्रल इंडिया प्लस पेनिनसुलर इंडिया, सेंट्रल इंडिया प्लस पेनिनसुलर इंडिया, सेंट्रल इंडिया प्लस पेनिनसुलर इंडिया, दोनों को मिला के भी हम क्या कह सकते हैं? दक्कन। दोनों को मिला के भी क्या कहा जा सकता है? दक्कन। सेंट्रल इंडिया प्लस पेनिनसुलर इंडिया, इन दोनों को जोड़ के भी हम क्या कह सकते हैं? दक्कन। अच्छा, सेंट्रल इंडिया और पेनिनसुलर इंडिया, इन दोनों के बीच अंतर क्या है? डिफरेंस क्या है? ठीक है, सो द डिफरेंस हियर इज ऑन बेस्ड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ कल्चरल एंड फिजिकल ज्योग्राफी, ठीक है। जो सेंट्रल इंडिया और पेनिनसुलर इंडिया है, इसके बीच के जो डिफरेंसेस हैं, they are based on the grounds of cultural and physical geography. They are based on the grounds of cultural and physical geography, ठीक है। अब देखो, दक्कन का मतलब, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस वास्ट पेनिनसुला, ये सब हो गया दक्कन, सब हो गया दक्कन, लेकिन इसमें ये वाला जो पार्ट है, इसको हम क्या कहेंगे? फार साउथ। तो इन हिस्ट्री दिस इज पॉपुलरली नोन एज फार साउथ और रिमोट साउथ। और डक्कन प्लेटू वाला जो रीजन होगा, इसको हम क्या कहेंगे? दक्कन। पॉपुलर वर्ड्स में अगर हम ऐसे कहें तो हम ये भी कह सकते हैं कि साउथ ऑफ रिवर नर्मदा। अगर आप नर्मदा रिवर को बाउंड्री बना लें तो इसके साउथ में चले आओ, क्या हो गया? दक्कन। फार साउथ में मत जाओ, क्योंकि फिर आपको हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स को कोरिलेट करने में दिक्कत होगी। मेरी समझ गया ना? नर्मदा रिवर के साउथ में जो डक्कन प्लेटू रीजन है, उसको हम क्या कहते हैं? दक्कन कहते हैं, ठीक है ना? ये चीज है। अच्छा, दक्कन और किसको कह सकते हैं? तो ये ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट, इसके बीच का जो पूरा का पूरा रीजन है, सब दक्कन है। बट ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा? रिमोट साउथ। तो देखो, कोई ऐसा पार्टिकुलर फिक्स डेफिनेशन नहीं, क्योंकि दक्कन का मतलब ही दक्षिण होता है। बट जब हम हिस्ट्री में इस वर्ड को यूज करेंगे, दक्कन, तो दक्कन वर्ड को यूज करते हुए अभी जैसे महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, है ना, अगर थोड़ा बहुत और हम आगे बढ़े तो कुछ एमपी के एरियाज को भी, छत्तीसगढ़ के एरियाज को भी, तमिलनाडु के एरियाज को भी हम दक्कन में काउंट कर सकते हैं। मेरी बात समझ गया ना? बट फार साउथ हम किसको कहेंगे? रिमोट साउथ किसको कहेंगे? ये वाला क्या कहेगा? रिमोट साउथ, है ना? तो दक्कन और साउथ इंडिया, इस तरह के वर्ड्स आपको मिलने वाले हैं हिस्ट्री में, रिमोट साउथ एंड द दक्कन रीजन। हैव यू गॉट दिस आइडिया? समझ में आया? ठीक है, वेस्टर्न दक्कन
एंड ईस्टर्न दक्कन। कुछ आइडिया लगा, कुछ समझ में आया, ठीक है ना। तो ये एक पार्ट हो गया वेस्टर्न दक्कन एंड ईस्टर्न दक्कन। इसके बाद देखो, अब जो हमारी हिस्ट्री है, हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया, ठीक है, तो वो एक दक्कन रीजन है और दूसरा क्या है, फार साउथ की हिस्ट्री। तो इस तरह से हम बांट के उसको पढ़ेंगे। दूसरी चीज, ये जो दक्कन रीजन है, दिस दक्कन रीजन विल इट, ये क्या है, बीच में हो जाता है ना, नॉर्थ और साउथ के बीच में हो जाता है। सो दिस विल ऑल्सो प्ले द रोल ऑफ अ कल्चरल ब्रिज बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ। नॉर्थ और साउथ के बीच में ये क्या करता है, कल्चरल ब्रिज का भी काम करता है, कल्चरल ब्रिज, ठीक है ना। इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल एज अ कल्चरल ब्रिज बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ। नॉर्थ और साउथ के बीच में ये कल्चरल ब्रिज का भी काम करता है। गॉट इट, इंपॉर्टेंट रोल नॉर्थ एंड साउथ। मेरी बात समझ गया। कल्चरल ब्रिज से क्या होगा, जैसे मान लो नॉर्थ में 4 वर्णा सिस्टम है, तो नॉर्थ से साउथ जाएगा कि नहीं। अगर 4 वर्णा सिस्टम साउथ में जाता है तो क्या ये उसी रूप में जाता है जैसा नॉर्थ में था। 4 वर्णा सिस्टम फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, इज इट द सेम इन नॉर्थ और देयर आर सम डिफरेंसेस इन साउथ, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें समझनी है कि जैसे बुद्धिज्म और जैनिज्म नॉर्थ में है, तो बुद्धिज्म और जैनिज्म साउथ में जाएगा कि नहीं जाएगा। बुद्धिज्म जाएगा, जैनिज्म जाएगा, कौन ज्यादा पॉपुलर होगा, बुद्धिज्म ज्यादा पॉपुलर होगा कि जैनिज्म ज्यादा पॉपुलर होगा। आयरन कल्चर नॉर्थ में है तो साउथ में जाएगा कि नहीं। टेम्पल कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज नॉर्थ में है, साउथ में है, ठीक है। दोनों के स्टाइल्स मिक्स होंगे कि नहीं, मिक्स होंगे तो वैसा स्टाइल होगा। और वैसा स्टाइल किस रीजन में पॉपुलर होगा, इट्स क्वाइट ऑब्वियस किस रीजन में पॉपुलर होगा, दक्कन रीजन में पॉपुलर होगा। तो वेस्ट, जैसे मैंने कहा चालुक्याज वर रूलिंग दक्कन, और वेसरा स्टाइल इज अ मिक्स स्टाइल ऑफ नागरा एंड द्रविड़ा टेम्पल आर्किटेक्चर। नागरा टेम्पल आर्किटेक्चर कहाँ है, नॉर्थ में। द्रविड़ा टेम्पल आर्किटेक्चर कहाँ है, साउथ में। तो दोनों का जो मिक्सचर है, हाइब्रिड स्टाइल है वेसरा, वो किस रीजन में आएगा, दक्कन में। तो बताओ, ज्योग्राफिकल फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट्स ऑफ हिस्ट्री और नॉट। क्या हिस्ट्री के डेवलपमेंट में ज्योग्राफिकल फैक्टर्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। कितनी सारी चीजें हैं। अब जब और भी कुछ चीजें आपको बताता हूं, और जब हम क्लास में लेक्चर्स को डिस्कस कर रहे होंगे तो हर जगह आप ये ध्यान रखना। जैसे जब मैं मौर्यन पीरियड पढ़ा हूं, व्हेन आई विल डिस्कस मगध इमर्ज एज अ पावरफुल किंगडम, तो ज्योग्राफिकल फैक्टर्स का क्या रोल है ये हम समझने की कोशिश करेंगे। नाउ एक स्लाइड देखते हैं, कुछ स्लाइड्स की हेल्प लेते हैं। ओके, नाउ यू आर लुकिंग एट दिस मैप, विजिबल है, ठीक है। अब इसमें देखो, अभी जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया, वट एवर आई हैव डिस्कस्ड विद यू, ठीक है ना, यू कैन गेट सम आइडिया फ्रॉम दिस मैप ऑल्सो, ठीक है। ये जो रीजन है इंडस प्लेन, ये पूरा का पूरा रीजन इंडस प्लेन है, ठीक है। और ये भी क्या है, प्लेन, फर्टाइल रीजन है। क्यों फर्टाइल रीजन है, क्योंकि यहाँ क्या है, रिवर वैली रीजन है, इंडस रिवर वैली रीजन। जैसे इंडस, ठीक है, झेलम, चेनाब, राबी, ब्यास, सतलज, और ये क्या हो गए, इंडस रिवर हो गए। तो ये पूरा का पूरा रीजन क्या हो जाएगा, रिवर वैली रीजन। और रिवर वैली रीजन फर्टाइल होगा कि नहीं, यस, ये फर्टाइल होगा। और अगर फर्टाइल होगा तो वहां इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी होगी। अगर इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी होगी तो वहां कल्चर और सिविलाइजेशन ग्रो करेगा, फ्लरिश होगा। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो सबसे फर्स्ट एक्सकेवेटेड साइट है वो क्या है, हड़प्पा। और आर्कियोलॉजी में एक ट्रेडिशन है कि अगर जो फर्स्ट एक्सकेवेटेड साइट है उसी के नाम पे उस सिविलाइजेशन का नाम रख दिया जाता है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज कॉल्ड हड़प्पा सिविलाइजेशन, ठीक है। तो अब आप समझ गए ना कि इंडस रिवर वैली एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, ओके, that is the river valley region, that is the fertile region. And in the fertile region what will happen, the first civilization, okay, develops here, that is Indus Valley civilization। तो उसके पीछे रीजन क्या है, रिवर वैली। यानी कि जो प्लेन्स हैं, रिवर वैली रीजन है, वो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी लेके आती है। इतनी बात समझ में आ गई। वैसे ही आप इस वाले एरिया में आ जाओ, इंडो गैंगेटिक, ये गंगेज प्लेन लिखा हुआ है ना पूरा का पूरा, ठीक है। तो इसको कहते हैं इंडो गैंगेटिक रिवर वैली बेसिन। अगर हम और क्लियर देखें, ओके, तो इंडो गैंगेटिक रिवर वैली बेसिन, ठीक है ना। ये पूरा का पूरा रीजन जो है ना, ये क्या है, इंडो गैंगेटिक रिवर वैली बेसिन है। अब बताओ, ये पूरा का पूरा एरिया फर्टाइल होगा कि नहीं, यस, फर्टाइल होगा। फर्टाइल होगा तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस बढ़ेगा। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन से क्या होगा, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्राफ्ट,
डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्राफ्ट किस चीज को प्रमोट करेगा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज को प्रमोट करेगा, ठीक है ना। और इस इकोनॉमिक एक्टिविटीज की वजह से ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोट होगा, ट्रेड एंड कॉमर्स की वजह से इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आएगी, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आएगी तो अर्बन सेंटर्स भी डेवलप होंगे, ठीक है। जैसे महाजनपद एरा में देयर इज अ बुक अंगुत्तर निकाय गिव्स एन अकाउंट और डिटेल्स ऑफ द 16 महाजनपद्स एंड majority of these महाजनपद्स are located in rich Indo-Gangetic river valley region, ठीक है। इनमें से ज्यादातर महाजनपद की लोकेशन क्या है, इसी में आगे मैं डिस्कस करूंगा चैप्टर्स में। तो बताओ ज्योग्राफिकल फैक्टर्स हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स को प्रभावित कर रहे हैं कि नहीं, कि अर्बनाइजेशन हुआ। जैसे आप कहते हो मगध, मगध वाज द सेंटर ऑफ पावर इन एंशिएंट इंडिया। आपको पता है कि नॉर्थ इंडिया में सेंटर ऑफ पावर क्या है, मगध है, पाटलिपुत्रा, ठीक है। जैसे मौर्यन एम्पायर, मगध ही तो सेंटर था नॉर्थ में, ठीक है। तो क्यों मगध सेंटर था, इसके पीछे रीजन यही है, ठीक है। अच्छा बताओ, मगध पावरफुल एम्पायर के रूप में इमर्ज हुआ, इसके पीछे रीजन क्या है, तो मिनरल्स भी आपको आसानी से मिल गए, यू ऑल्सो गॉट मिनरल्स, जैसे आयरन ओर मिला, आयरन ओर मिलने की वजह से ओके यू कैन मेक आयरन प्लाउज, आयरन प्लाउज से क्या होगा, डीप टिलिंग होगा, डीप टिलिंग से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन और प्रोड्यूस बढ़ेगा। इसके अलावा आयरन मिलने की वजह से यू कैन आल्सो मेक सोफिस्टिकेटेड वेपन्स बाय यूजिंग आयरन। तो आयरन से जो आपके स्वॉर्ड्स बनेंगे, ठीक है, वो एक तरह से क्या करेगा, आपको मिलिट्री एडवांटेज देगा अपने आपके एनिमीज पर, तो आपको पावरफुल भी बना रहा है प्लस वो आपको प्रॉस्पर्स भी बना रहा है, ठीक है। तो 16 महाजनपद्स में से मेजॉरिटी ऑफ दीज महाजनपद्स आर बिगर स्टेट्स, दैट इज द स्टेट फॉर्मेशन एरा, दे आर लोकेटेड इन दीज एरियाज। ये भी क्या है, दैट इज द इम्पैक्ट ऑफ ज्योग्राफी ऑन हिस्ट्री, ज्योग्राफी का हिस्ट्री पे किस तरह से इम्पैक्ट है, ऐसे हम समझ सकते हैं। गॉट इट, ओके। तो एक तो आइडिया ये आपको आया, ठीक है ना। इंडो गैंगेटिक प्लेन्स, देखो ये पूरा का पूरा एरिया किस चीज को दिखला रहा है, इंडो गैंगेटिक प्लेन्स को दिखला रहा है, ठीक है। और मैंने जब दिल्ली की बात की थी और कहा था कि इंपीरियल कैपिटल दिल्ली को बैकयार्ड से सपोर्ट मिल सकता है, ठीक है, एट द टाइम ऑफ वॉर एसेंशियल कमोडिटीज का, तो सपोर्ट इन रीजन से मिल सकता था। इंपीरियल कैपिटल दिल्ली कुड गेट सपोर्ट फ्रॉम दीज पर्टिकुलर रीजंस। अब इसमें देखो, दिस इज व्हाट, विंध्यन रेंजेस। मैंने कहा ना कि विंध्यन रेंजेस क्या कर रहा है, नॉर्थ और साउथ दो पार्ट में डिवाइड कर दे रहा है, और दक्कन का मतलब होता है दक्षिण मीन साउथ, पूरा का पूरा। बट ये जो दक्कन प्लेट्यू रीजन है, ये जो रीजन है, इसको हम किस नाम से जानेंगे, दक्कन के नाम से जानेंगे, गॉट इट। और ये वाला जो एरिया है पेनिनसुलर इंडिया का, दिस विल बी नोन बाय द नेम ऑफ रिमोट साउथ और फार साउथ, रिमोट साउथ और फार साउथ के नाम से जानेंगे। ऐसा कोई स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं है जो क्लियरली बताए, यूनिवर्सली बताए कि दक्कन में ये स्टेट आते हैं और साउथ इंडिया में ये आते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी बात समझ गए ना, वी हैव टू मेक एन एस्टिमेट, क्लियर, कि किस एरिया को दक्कन में ले आना है, किस एरिया को साउथ इंडिया में लाना है। तो हिस्टोरियंस ने अपने हिसाब से इंटरप्रेट किया, बट ये सारे एरियाज जो है ना, ये आ जाएंगे आपको, है ना, साउथ इंडिया में, गॉट इट। तो ये है, ओके, रिवर बेसिन, रिवर वैली रीजन, नॉर्दर्न प्लेन्स, ठीक है ना, इंडस रिवर बेसिन, ग्रेट हिमालयाज, ये आप समझ गए ना, विंध्य सतपुड़ा। यहाँ रिवर्स की भी कंडीशन दी हुई, जैसे नर्मदा, अभी मैंने बताया ना कि जो नर्मदा रिवर है, ठीक है, इसके साउथ में, साउथ का मतलब यही हो गया ना, ये वाले पूरे के पूरे एरियाज को हम पेनिनसुलर इंडिया के एरियाज को क्या कहते हैं, दक्कन, ठीक है। दक्कन प्लेटू वाला रीजन टेक्निकली कहा जाएगा दक्कन, वैसे दक्कन के टेक्निकल मीनिंग में सब कुछ आ जाएगा कि वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट, इसके बीच का ये कोरोमंडल कोस्ट है। तो जब हम कोस्टल एरियाज के बारे में पढ़ेंगे, सो दिस कोरोमंडल कोस्ट विल प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है। यहाँ पे मालाबार कोस्ट विल आल्सो प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल, ओके। तो हमने क्या देखा कि फ्रॉम नॉर्थ, इन नॉर्थ देयर इज द हिमालयस, दैट इज द ग्रेट सेंटिनल ऑफ द नॉर्थ, उत्तर का महान प्रहरी। और फिर हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे अरेबियन सी है, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है। तो जो हमारे एपिक्स हैं, ठीक है, या जो हमारे एंशिएंट इंडिया के टेक्स्ट हैं, वो मेंशन करते हैं भारतवर्ष के बारे में, और भारतवर्ष में कौन सा लैंडमास आएगा, ठीक है, कौन सा एरिया आएगा, उसके बारे में वो क्या बताते हैं भारतवर्ष के बारे में बताते हुए। तो जैसे कि भारतवर्ष में हिमालय के बाद, ठीक है, नॉर्थ में हिमालय है, और फिर ये ओशियंस हैं, सीज हैं, इनके बीच का पूरा जो लैंड मास है, वो पूरा का पूरा क्या है, भारतवर्ष है, ठीक है ना। तो ये इस तरह से चीजों को डिफाइन किया गया है, ओके। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर, वी आर टॉकिंग अबाउट दीज नॉर्दर्न प्लेन्स,
तो नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में हमने क्या देखा कि नॉर्दर्न प्लेन्स आर द cradle of ancient Indian civilization and culture. Are they cradle of ancient Indian civilization and culture? Yes or no? Yes. ठीक है. And for example, Magad Empire, उधर इंडस रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज में चले जाओगे तो इंडस वैली सिविलाइजेशन. तो दिस इज हाउ ज्योग्राफी इज अफेक्टिंग और हैविंग प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस ऑन द इवेंट्स ऑफ हिस्ट्री. मेरी बात समझ गए? ओके. द नॉर्दर्न प्लेन्स विल दे बी इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ इंपीरियल पावर्स? क्या वो इंपॉर्टेंट सेंटर हो गए इंपीरियल पावर्स? यस और नो? यस, दे विल बी द इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ द इंपीरियल पावर्स. फॉर एग्जाम्पल मगध रीजन, मगध आ जाएगा. ठीक है. और सबसे बड़ी बात की इंद्रप्रस्थ न्यू दिल्ली, यहाँ पे है ना इंद्रप्रस्थ जो था न्यू दिल्ली, इसकी लोकेशन है. इसी तरह से पुराने समय में जैसे आप देखो तो थानेसर, ठीक है, दैट इज थानेसर रीजन. जैसे हर्षवर्धन के टाइम में मैं आपको इसके बारे में डिस्कस करूंगा. कुरुक्षेत्र, कन्नौज बिकेम एन इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ पावर, जिसके लिए पालास, प्रतिहार एंड राष्ट्रकूटास इनके बीच में लड़ाई हुई थी. मेरी बात समझ गया ना? तो ये सारे के सारे जो एरियाज हैं दे ऑल okay are related to the northern plains. So northern plain is also the important center of power. ठीक है. cradle of civilization means है ना सभ्यता का जनक या जननी, हिंदी में उसको कहते हैं. यानी बहुत सारी सभ्यताओं का जन्म हुआ. birth of many civilizations took place here. Got it? Cradle of civilizations. Have you understood? Okay. Now the next important thing, rivers play an important role in the growth and development of cities or not? Yes or no? Rivers play an important role or not? हाँ, रिवर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. रिवर का क्या क्या रोल हो सकता है जोग्राफिकल फैक्टर्स में देखो तो एक तो ट्रेड एंड कॉमर्स में आप रोड यूज कर सकते हो. रेलवेज तो था नहीं हमारे पास, है ना, तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए हम रिवर्स का यूज कर सकते हैं. दूसरी चीज, रिवर बैंक्स जो है वो ह्यूमन हैबिटेशन के लिए सबसे परफेक्ट और सुटेबल लोकेशन होगा. जैसे स्टोन एजेस में भी आप देखोगे कि जो ह्यूमन इनहैबिटेशन है वो रिवर बैंक्स के किनारे ही है. तो जितने इंपॉर्टेंट सिटीज हैं, ठीक है, रिवर क्या है, जैसे नॉर्मली क्या होता है लैंड रूट्स पे जो रोड्स हम बनाते हैं ये खुद से बनाते हैं, बट रिवर क्या है नेचुरल रोड है. वो नेचुरल रोड है, वो रोड ही है, बट नेचर ने वो रोड हमें दिया है कि यूजिंग बोट्स एंड अदर कम्युनिकेशन चैनल वी कैन हार्नेस दैट रूट. सो दे आर द नेचर्स रोड. ओके, सो दे विल प्रोमोट ट्रेड एंड कॉमर्स. ट्रेड एंड कॉमर्स को प्रमोट करेगा. ठीक है. अच्छा, जो इनहैबिटेंट्स है वो रिवर बैंक्स पे रहेंगे, फर्टाइल एरिया है. जैसे आप पाटलिपुत्रा देख लो, काशी देख लो, ये सब किस नदी के किनारे है? गंगा. इलाहाबाद एक मतलब ऐसा शहर है, प्रयागराज जिसको आप कहते हो, जो प्राचीन शहर में जिसको काउंट किया जाता है, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एंशिएंट सिटीज. ठीक है ना. इसी तरह से इंद्रप्रस्थ, यमुना, दिल्ली. अब तो यमुना नदी का देखा होगा आपने, आजकल माहौल अलग ही है. ठीक है, ठीक है. इसी तरह से मगध है. ठीक है. तो all these are located on the banks of important rivers. Rivers will bring what? Economic growth and prosperity. ठीक है. अच्छा बताओ, ये पूरा का पूरा जो रीजन है ये मिनरल रिच रीजन भी है कि नहीं? यस. अबेंडेंस ऑफ मिनरल वेल्थ, ठीक है, ये भी है. और मिनरल वेल्थ भी हमारी इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी के लिए जरूरी है. जैसे आयरन, कॉपर, मैंगनीज, गोल्ड, सिल्वर, प्रीशियस स्टोन्स, ठीक है, ये सब हमारे यहाँ क्या करेंगे, हमें हमारी इंडस्ट्रीज को बूस्ट करेंगे और इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन को इंश्योर करेंगी. गॉट इट? ये होगा. अच्छा बताओ, जब इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी होगा, एग्रीकल्चर बेहतर होगा, इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन होगा, ट्रेड एंड कॉमर्स होगा, सो इन दैट कंडीशन ओके द रूलर्स विल पैटर्नाइज आर्ट और नॉट? यस. दे विल पैटर्नाइज स्कॉलर्स और नॉट? यस. अगर आपके पास सरप्लस है, अगर आप खाने पीने के लिए जूझ रहे हो तो आर्किटेक्चर क्या करोगे? आर्किटेक्चर तो तभी आएगा ना जब इकोनॉमिक ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी आएगी. मेरी बात समझ गया? तो इकोनॉमिक ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी भी आती है. और यही रीजन है कि इंडिया बिकम्स अ लैंड ऑफ रिलीजन, फिलोसफी एंड स्पिरिचुअलिज्म आल्सो. क्यों इंडिया में इतने सारे रिलीजन्स आए और सारे के सारे रिलीजन एक ही बात सिखा रहे हैं? क्या? कल्चर ऑफ सेक्रीफाइस. विवेकानंद ने कहा इतना भी सेक्रीफाइस जरूरी नहीं है. मेरी बात समझ गया ना, कि बाबा बन जाओ, जिसको देखो वही बाबा बन रहा है. तो सब क्या सिखा रहे हैं? कल्चर ऑफ सेक्रीफाइस. त्याग करो, त्याग करो, त्याग करो. लोगों को समझ में भी आ रहा है कि जीवन में धन संपत्ति इकट्ठा करके क्या करेंगे. बाबा लोग यही प्रवचन देते हैं और खुद मर्सिडीज में घूमते हैं. ठीक है. तो कल्चर ऑफ सेक्रीफाइस. ठीक है. देखो सभी बाबाओं के पास महंगी महंगी गाड़ियां हैं. ठीक है. वो ऑल्टो वगैरह से नहीं चलते हैं, वैगनार से नहीं चलते हैं, वैसे उस गाड़ियों से हम लोग चलते हैं.
ठीक है ना। तो कल्चर ऑफ सेक्रीफाइस को क्या किया, प्रमोट किया, ठीक है ना। तो षड दर्शन में आउट ऑफ 6 फिलोसफीज, ठीक है, एक्सेप्ट वन, ऑल प्रोमोट्स दिस कल्चर ऑफ सेक्रीफाइस। सब क्या करते हैं, कल्चर ऑफ सेक्रीफाइस को प्रमोट करते हैं। इंडिया के लोग पीस लविंग है, टॉलरेंट है, ठीक है, और कंटेंटेड लोग हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि रिसोर्सेज के लिए भागा भागी कहीं दूसरे देश पे कंट्रोल कर ले, कब्जा कर ले, ठीक है। अच्छा देखो क्या होता चला जाएगा, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ता चला जाएगा और रिसोर्स स्कैर्सिटी होती चली जाएगी, आप देखोगे कि लोगों का जो व्यवहार है वो अपने आप बदलता चला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ओके, you will realize that the people who belong to your father's or grandparents generation, they were very helpful and supportive। वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल और सपोर्टिव थे। आपने ऐसा, जैसे आपके फादर या ग्रैंडफादर से आप सुनना, वो आपको बताएंगे अपने जमाने की कहानियां कि गांव में अगर किसी को प्रॉब्लम है, कोई फाइनेंशियल क्राइसिस है, कोई बीमार है, तो पूरे गांव भर के लोग मिलकर उसकी हेल्प करते थे, ठीक है। कोई अपनी बेटी की शादी नहीं कर पा रहा है तो ऑल पीपल विल कलेक्ट फंड्स और उसकी शादी करवाएंगे। उसके परिवार का सम्मान पूरे गांव का सम्मान होता था। होता ना, अभी भी होता है कई जगहों पे, इट्स नॉट कंप्लीटली ओके, अभी पूरी तरह से ये चीजें वेपरेट नहीं हुई है। तो इस तरह के लोग कोऑपरेटिव थे। लेकिन अब क्या है, और लोग क्या करते थे, एक सोशल रिलेशन को मेंटेन करके चलते थे, सोशल फैब्रिक वैसा था। लेकिन आज लोग इंश्योरेंस करवा लेते हैं, जरूरत नहीं है किसी से हेल्प लेने की। मेडिकल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, ठीक है, तमाम तरह के इंश्योरेंस चल रहा है। शादी विवाह खुद ही कर ले रहे हैं, लव मैरिज हो जा रहा है, अरेंज मैरिज की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। तो कहीं ना कहीं वो सोशल रिलेशंस क्या हो रहा है, अफेक्ट हो रहे हैं। अच्छा, सोशल रिलेशंस अफेक्ट होने के पीछे रीजन क्या है, बताओ। नेचर ऑफ जॉब्स एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, रिसोर्स स्कार्सिटी, धीरे धीरे हम एक अलग तरह की इकोनॉमी में ढलते चले जा रहे हैं। मेरी बात समझ गया ना। और कहीं ना कहीं इसमें पुरानी परंपरागत चीजें, ट्रेडिशनल चीजें कमजोर पड़ती चली जा रही है। तो इंडिया के लोग जो थे वो पैसिफाइड थे। पैसिफाइड क्या, कंटेंटेड बोलेंगे। दे आर म्यूचुअल टॉलरेंट एंड पीस लविंग। दे बिलीव इन द कल्चर ऑफ सेक्रीफाइस, ऑल ड्यू टू ज्योग्राफी, ठीक है। अगर हिमालय नहीं होता तो फिर आप भी ऐसे नहीं होते। मेरी बात समझ गया ना। दिस इज ऑल ड्यू टू ज्योग्राफी। तो कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यू कैन राइट दिस, दैट द इंडियन पीपल पीस लविंग, म्यूचुअली टॉलरेंट, पीस लिविंग, mutually tolerant and well contented people, peace loving, mutually tolerant and well contented people, believing in culture of sacrifices, believing in culture of sacrifices, believing in the culture of sacrifices, this is all due to our geography। ये सब हमारी ज्योग्राफी की वजह से है। और मजेदार बात क्या है, और मजेदार बात सुनो, एंशिएंट इंडिया में इन्वेडर्स केम टू इंडिया, जैसे इंडो ग्रीक्स, शकास, पहलवास, कुशानास, दे केम टू इंडिया एंड दे बिकेम इंडियनाइज्ड। वो क्या हो गए, इंडियनाइज्ड हो गए, ठीक है। जैसे मान लो इंग्लैंड से कोई आदमी आया जिसका नाम है मिस्टर, है ना, जैक्सन, और इंडिया में आके वो अपना नाम जनार्दन तिवारी रख ले, तो आपको कितना हंसी आएगा कि अगर जैक्सन ने अपना नाम बदल के क्या कर लिया, जनार्दन तिवारी रख लिया। वही तो हुआ कनिष्क के साथ। कनिष्क बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ इन्वेडर्स। कनिष्क क्या है, कुशाना रूलर है, एंड कुशाना आर द इन्वेडर्स टू इंडिया। और कनिष्क इंडियनाइज्ड नेम है। ये वही है कि जैक्सन बन गए जनार्दन तिवारी, ठीक है। तो कनिष्क नेम इज ऑल्सो इंडियनाइज्ड, ठीक है। कनिष्क पैटर्नाइज संस्कृत लिटरेचर इंडिया। कनिष्क हैज अ ग्रेट कंट्रीब्यूशन टू इंडियन आर्ट एंड कल्चर एंड द नेम इटसेल्फ इज इंडियनाइज्ड। तो क्या हुआ एंशिएंट इंडिया में, फॉरेनर्स केम टू इंडिया एंड लेटर दे अडॉप्टेड इंडियन कल्चरल प्रैक्टिसेस एंड ट्रेडिशंस, क्योंकि उनके यहाँ भी इस तरह का कोई कल्चर, कोई रिलीजन डेवलप ही नहीं हुआ था। क्योंकि कल्चर, रिलीजियस ट्रेडिशंस, फिलोसॉफिकल ट्रेडिशंस, ये सब डेवलप होने के लिए क्या चाहिए, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी इज वन फैक्टर, ठीक है। भूखा आदमी जब चिल्लाएगा तो वो रोटी रोटी चिल्लाएगा, वो राम राम नहीं चिल्लाएगा। मेरी बात समझ गया ना। जिसको भूख लगी हो वो क्या चिल्लाएगा, रोटी या राम, क्या बोलेगा वो, रोटी। उसके लिए रोटी प्राइमरी है ना। एक लाइन है ना कि भूखे भजन ना होई गोपाला, ठीक है, भूखे पेट भजन नहीं होता है, ठीक है। तो ये इस बात के बड़े ही मतलब बड़े मायने हैं। तो इस बात को आप समझो कि जो सेंट्रल एशियन ट्राइब्स इंडिया आ रहे हैं, और इंडिया आके, है ना, जैसे हेलियोडोरस केम टू इंडिया और उसने भगवतिज्म अडॉप्ट कर लिया।
क्यों अडॉप्ट कर लिया? क्योंकि जहां से आया था वहां मामला एकदम शून्य था, कुछ था ही नहीं। यहाँ आया तो मिला, कहा कि अरे बहुत बढ़िया सिस्टम चल रहा है। ठीक है, इंडो ग्रीक है ना, मिनेंडर केम टू इंडिया, मिल गया उसको बुद्धिस्ट मॉन्क नागसेन। मिनेंडर और नागसेन के बीच में डिस्कोर्स शुरू हुआ, बातचीत शुरू हुई। ठीक है, मिनेंडर ने क्वेश्चन पूछना शुरू किया, है ना, और नागसेन ने रिप्लाई करना शुरू किया। तो उनका जो क्वेश्चन आंसर का जो बुकलेट है वही है मिलिंद पन्नू, द क्वेश्चंस ऑफ मिलिंद रिप्लाइड बाय नागसेन, है ना। उस टाइम की घटना चक्र है मिलिंद पन्नू, ठीक है ना। तो क्वेश्चन आंसर किस में आ गया? मिलिंद पन्नू। तो जब नागसेन ने रिप्लाई किया उसके आंसर्स का, तो उसकी सारी चिंताएं शंकाएं दूर हो गई। उसने कहा वाह, अब मैं बन जाऊंगा बुद्ध, ठीक है, बुद्धिस्ट। तो मिनेंडर क्या बन गया? बुद्धिस्ट बन गया, ठीक है। और हम लोग नाम को बदलने में माहिर है। मिनेंडर को बदल के कर दिया मिलिंद, अलेक्जेंडर को बदल के कर दिया सिकंदर, ठीक है। एरिस्टोटल को बदल के कर दिया अरस्तु, सोक्रेटिस को बदल के क्या कर दिया? सुकरात। तो हम अपने तरीके से बुलाते हैं सबको प्यार से, ठीक है। तो मिनेंडर, गॉट इट। तो वाई दे अडॉप्टेड इंडियन रिलीजन, इंडियन कल्चर, क्योंकि वहां कुछ था ही नहीं। अच्छा अब सोचो, जो टर्क्स आए, मुगल्स आए, ठीक है। तो व्हेन द टर्किस केम, व्हेन द अरब्स केम, ओके, व्हेन दे केम, उसके पहले क्या हो चुका है? एडवेंट ऑफ इस्लाम, हजरत मोहम्मद 622, ठीक है। तो हजरत मोहम्मद ने इस्लाम धर्म की नींव रखती थी उसके पहले। और इस्लाम की नींव क्यों रखी? इसके पीछे क्या रीजन था? इसके पीछे रीजन ये था कि बहुत सारे ट्राइबल ग्रुप्स हैं, उसमें से बहुत सारे ट्राइबल ग्रुप्स ऐसे भी थे जो आइडल वर्शिप करते थे, गॉट इट। बट दीज डिफरेंट ट्राइबल ग्रुप्स वर वॉर ट्राइंग इन अ स्टेट ऑफ कॉन्टिन्यूअस कॉन्फ्लिक्ट विद ईच अदर, आपस में एक दूसरे से लड़ते रहते थे, ठीक है। और आपस में एक दूसरे से लड़ते रहते थे। अगर इन सभी ट्राइबल ग्रुप्स को यूनाइट करना, तो यूनाइट करने के लिए सबसे इफेक्टिव चीज क्या हो सकती है? रिलीजन। मेरी बात समझ गया ना? रिलीजन सबसे बेहतरीन है तरीका। तो वहां पे आता है इस्लाम। और इस्लाम किस बात में बिलीव करता है? इक्वलिटी। सबसे ज्यादा जोर किस बात पे? इक्वलिटी पे है। क्यों ऐसा है? क्योंकि वो जो वॉर एरिंग ट्राइब्स है उनको क्या किया जा सके? एक किया जा सके, यूनाइट किया जा सके। तो इस्लाम फोकसेस ऑन इक्वलिटी, वो इक्वलिटी की टीचिंग पे बिलीव करता है। कोई वहां पे अपर नहीं, कोई लोअर नहीं, इस तरह की बातें प्रमोट करी जाती है। तो रीजन क्या है? कि हंड्रेड्स ऑफ ट्राइबल ग्रुप्स को यूनाइट करना। अब देखो आइडल वर्शिप है, तो आइडल में भी क्या होगा? डिफरेंट काइंड ऑफ आइडल्स विल बी वर्शिप्ड, है ना। तो नो नो आइडल वर्शिप के प्रिंसिपल को लेके आना। तो इस तरह से इस्लाम ने कुछ नए प्रिंसिपल्स को जन्म दिया। और जब इंडिया में टर्क्स आते हैं, अरब्स आते हैं, तो उनके पास एक धर्म है। और वो धर्म कौन सा है? इस्लाम। और उस धर्म का नेचर क्या है? तो वो मिशनरी रिलीजन है। मिशनरी रिलीजन, जैसे क्रिश्चियनिटी वाज अ मिशनरी रिलीजन, जेसुइट्स वेर मिशनरी। जैसे पोर्टुगीज इंडिया में आते हैं, तो वो मिशनरी रिलीजन, अपनी रिलीजन को प्रमोट करते हैं, उसके लिए चर्च बनाते हैं, इंक्विजिशंस करते हैं। अच्छा देखो उसमें क्या था, कि जैसे मान लो कि आपने पोर्टुगीज के रिलीजन को एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन चोरी छुप के कभी कभी हनुमान चालीसा पढ़ ले रहे हो और पोर्टुगीज को पता लग गया, तो फिर वो कहेंगे ये क्या है? क्रिप्टो क्रिश्चियन है। मेरी बात समझ गया ना? क्रिप्टो, क्रिप्टो मतलब, ठीक है, अपने आप को क्रिश्चियन बताने का ढोंग कर रहा है, बीच बीच में जाके हनुमान चालीसा पढ़ ले रहा है। तो इसको क्या करो? इसको एग्जीक्यूट करो, ठीक है। तो इंक्विजिशंस का कॉन्सेप्ट आता है वहां पे, ठीक है। पादरी सजा सुनाते हैं आपको। मेरी बात समझ गया ना? तो एक मिशनरी रिलीजन का कॉन्सेप्ट है। तो क्रिश्चियनिटी इज अ मिशनरी रिलीजन, इस्लाम इज अ मिशनरी रिलीजन। मतलब हम इस रिलीजन को फॉलो करेंगे, बट वी विल ट्राई टू प्रमोट एंड प्रोपेगेट दिस रिलीजन इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एज वेल। दूसरी जगहों पे भी हम इस रिलीजन को प्रमोट करने की कोशिश करेंगे। तो इसी को हम क्या कहते हैं? मिशनरी रिलीजन। अच्छा बताओ, हिंदू रिलीजन कभी भी मिशनरी रिलीजन रहा है क्या? नहीं। तो अब देखो, हिंदू रिलीजन मिशनरी रिलीजन है नहीं। जो ट्राइब्स इंडिया में आ रहे हैं, है ना, वो दे आर न्यूली कन्वर्टेड टू इस्लाम्स एंड दे आर फिल्ड विद अ मिशनरी जील। वो एक मिशनरी जील से भरे हुए हैं कि हमें नई जगह पे जाना है और हमें क्या करना है, कि जो नॉन बिलीवर्स हैं, नॉन बिलीवर्स ऑफ इस्लाम, वी हैव टू कन्वर्ट देम इनटू द बिलीवर्स ऑफ इस्लाम। उनको बदलना है। अब इंडिया आते हैं, इंडिया में मिल जाते हैं इनको लोग। कौन से लोग मिल जाते हैं? वेल कंटेंटेड पीपल, एकदम पैसिफाइड टाइप के लोग हैं, संतुष्ट हैं, कल्चर ऑफ सेक्रीफाइस में बिलीव करते हैं।
तो उनका काम तो आसान कर दिया ना आपने, प्लस आपने क्या किया, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर्स को, है ना, मेंटेन करने के लिए कोई अफेक्ट, मतलब कोई सफिशिएंट एफर्ट नहीं किया। जैसे एक स्कॉलर है अल्बरूनी, ठीक है, 972 टू 1048 उसका टाइम पीरियड है। तो अगर हम कहें तो 10th और 11th सेंचुरी एडी का वो स्कॉलर है अल्बरूनी, ठीक है। अल्बरूनी ने अपनी एक बुक लिखी जिसका नाम है तारीख उल हिंद, ठीक है, किताब उल हिंद, तारीख उल हिंद भी कहते हैं। तो अलबरूनी उस किताब में लिखता है, ठीक है, और बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात वो लिखता है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। कह रहा है कि भारतीय लोग एक ऐसी बीमारी से पीड़ित है जिसका कोई इलाज नहीं। इंडियंस आर सफरिंग फ्रॉम अ स्पेशल पर्टिकुलर काइंड ऑफ इलनेस विच डज नॉट हैव अ मेडिसिन। भारतीय लोग एक ऐसी बीमारी है भारतीय लोगों को जिसका कोई इलाज नहीं है। और वो इलाज वो बीमारी कौन सी है, वो बीमारी है भ्रम की बीमारी। भ्रम की बीमारी, जैसे बहुत सारे यूपीएससी एस्पायरेंट्स को भी भ्रम की बीमारी होती है। वो 2 लाख 3 लाख रुपए कोचिंग में देते हैं, कोचिंग कंप्लीट कर लेते हैं, कोचिंग सिलेबस कंप्लीट कर देता है और बच्चे को लगता है कि हमने सिलेबस कंप्लीट कर लिया। आपने नहीं किया, कोचिंग ने किया, टीचर ने किया। तो आपको क्या है, भ्रम की बीमारी है। आपकी तैयारी तब होगी जब सिलेबस कौन कंप्लीट करेगा, आप करोगे। तो यूपीएससी एस्पायरेंट्स को भी ये भ्रम की बीमारी होती है, ठीक है। और उसके पीछे रीजन है तांत्रिक, मार्केट में बैठे हुए कहेंगे हमारे पास मंत्र है तुमको 21 साल में आईएएस बनाने का। अगली बार कोई कहे तो कहना कि एक पेपर पे लिख के दो, है ना, कि ये मंत्र अप्लाई कैसे होगा, कितनी क्लासेस देने वाले हो, फाउंडेशन क्लासेस, नंबर ऑफ क्लासेस बताओ, तब मैं अपने आप समझ जाऊंगा कि ये मंत्र ठीक है कि नहीं। मेरी बात समझ गया ना। तो उसने क्या कहा कि भ्रम की बीमारी है, और ये भ्रम किस चीज का है, ठीक है, कहा कि भ्रम किस चीज का है। तो कहा पहली बात तो इंडियंस को ये लगता है कि उनके देश के जैसा कोई दूसरा देश नहीं है। देर इज नो एनी कंट्री लाइक देयर्स इन द वर्ल्ड, उनके देश के जैसा कोई देश नहीं है। देर इज नो एनी किंग लाइक देयर्स, ठीक है, देर इज नो एनी साइंस लाइक देयर्स, देर इज नो एनी नॉलेज लाइक देयर्स। कहा इंडियंस को ये लगता है कि ना उनके जैसा राजा पूरी दुनिया में है, न उनके जैसा देश किसी मतलब कहीं और एग्जिस्ट करता है, ओके। और अल्बरूनी ये लिखता है कि इतना कुछ होने के बावजूद इंडियन लोग खुद ही अपने ही लोगों के साथ नॉलेज इम्पार्ट करने में डरते हैं। टारगेट पे कौन थे, ब्राह्मण्स। ब्राह्मण्स ने क्या क्या रखा था, नॉलेज पे मोनोपोली। शूद्रास को एजुकेशन लेने का हक नहीं था। तो बताओ, यानी कि अल्बरूनी क्या कहना चाहता है कि इंडियंस में एक खास किस्म का सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है, और इतना सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स अच्छा नहीं है। तो देखो इंडियंस की कमी की तरफ तो अल्बरूनी भी बता रहा था ना कि आपके अंदर एक सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है, उससे बाहर आइए। वो सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, जैसे ब्राह्मण्स हैड मोनोपोलाइज्ड द सिस्टम ऑफ एजुकेशन फॉर थाउजेंड्स ऑफ इयर्स, इट मींस यू आर नॉट गिविंग द अपॉर्चुनिटी टू शूद्रास टू बिकम पार्ट ऑफ दिस एजुकेशन सिस्टम। तो इससे आपका एजुकेशन सिस्टम प्रमोट होगा कि नहीं, नहीं होगा ना। नॉलेज तो और आगे कैसे बढ़ेगा, जब आप डेमोक्रेटाइज करोगे उसको तो ज्यादा चांसेस है ना उसके आगे बढ़ने के। अगर आप रिस्ट्रिक्शंस, इफ विल पुट रिस्ट्रिक्शंस ऑन शूद्रास, इफ विल पुट रिस्ट्रिक्शंस ऑन women, and still you are claiming that you are the spiritual guru, how is it possible? ये पॉसिबल नहीं है ना, ठीक है। फर्स्ट बिलीव इन द आइडिया ऑफ इक्वलिटी, आई बिलीव इन द आइडिया ऑफ ह्यूमनिज्म कि ऑल आर इक्वल एंड ऑल शुड गेट इक्वल अपॉर्चुनिटी, ठीक है, कोई अपर कास्ट नहीं, कोई लोअर कास्ट नहीं। तो अल-बरूनी ने इस बात की तरफ इशारा किया था, और कहीं ना कहीं, ठीक है, जो इन्वेजन्स हुए और फ्रीक्वेंट इन्वेजन्स हुए, इन्वेडर्स गॉट एस्टैब्लिश्ड देमसेल्व्स एज द रूलर्स इन इंडिया, उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन ये भी है, राइट, दैट वी वेयर, ओके, लिविंग इन अ काइंड ऑफ सुपेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और इसी सुपेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स से बाहर निकालने के लिए एक बार रिफॉर्म मूवमेंट इंडिया में चला 600-300 बीसी पीरियड में, जिसको हम कहते हैं बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। दे वर लाइक द रिफॉर्म मूवमेंट्स ऑफ द टाइम। इसी सुपेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स से इंडियंस को बाहर निकालने के लिए भक्ति एंड सूफी मूवमेंट्स आर देयर। इसी सुपेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स से इंडियंस को बाहर निकालने के लिए देयर आर 19th सेंचुरी 20th सेंचुरी सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स इन इंडिया। इसी भ्रम से तो बाहर निकालना था ना, कि जो सोशियो रिलीजियस एविल्स हैं, जो ऑर्थोडॉक्सीज हैं, इनको हम क्या कर सकें, इनसे हम बाहर आ सकें। गॉट इट, दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। तो अब आप समझ गए कि हाउ जोग्राफिकल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस हिस्ट्री, कैसे हिस्ट्री को इन्फ्लुएंस करता है। जैसे दक्कन का लोकेशन ही ऐसा है कि दक्कन विल
डी अ कल्चरल ब्रिज बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ। दक्कन में वेसराय स्टाइल आएगा, इसका रीजन क्या है? उसका लोकेशन। मेरी बात समझ गए? तो व्हेन आई विल डिस्कस विथ यू द हिस्ट्री एनसीईआरटी बुक, ठीक है, तो आप इन सारी चीजों को रिलेट कर पाओगे। गॉट इट? सो दिस इज जस्ट एन इंट्रोडक्शन दैट व्हेनेवर वी आर रीडिंग द चैप्टर्स ऑफ हिस्ट्री, ओके, यू विल फोकस ऑन द मैप्स, और थोड़ा इस चीज को खुद से रिलेट करने की कोशिश करना कि यहाँ पे ज्योग्राफी कैसे इंपॉर्टेंट प्ले कर रही है, रोल, है ना, डिसाइड करने में हिस्टोरिकल इवेंट्स के। तो दिस इज ओनली, ओके, आज की क्लास केवल इसलिए थी क्योंकि हमारे दिमाग की खिड़कियां थोड़ी सी खुल जाए, तो अलग अलग चैप्टर्स में हम थोड़ा मैप पे और इन सारी चीजों पे काम कर पाएंगे। ओके, तो मुझे लगता है कि आप एक आइडिया ले पाए हो, और आप 150 वर्ड्स में आंसर लिख सकते हो इस क्वेश्चन का। राइट अ क्वेश्चन। क्वेश्चन इज डिस्कस हाउ, discuss how geographical factors, discuss how geographical factors, discuss how geographical factors, okay, influences the developments of history. Discuss how geographical factors influences the developments in history with special reference to Indian history. With special reference to Indian history. With special reference to Indian history. ठीक है, इंडियन हिस्ट्री के रेफरेंस है। अब देखो इसमें बहुत सारी चीजें हैं, मॉडर्न में भी आप ले आ सकते हो, मिडिवल, अभी तो एंशिएंट हमने बताया, ये यही क्वेश्चन का आंसर हम मिडिवल एज में भी दे सकते हैं, ठीक है, जिसमें मंगोल पॉलिसी है, टर्क्स है, यही सारी चीजों को, इस्लाम का एडवेंट है, यही चीज का आंसर हम मॉडर्न इंडिया में भी दे सकते हैं, पोर्टुगीज, डच और ये सारी चीजें। अच्छा, एक और एरिया है कोस्टल एरियाज, ठीक है, तो कोस्टल रीजन्स विल प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल और नॉट? यस, कोस्टल रीजन्स फॉर द ट्रेड एंड कॉमर्स, ठीक है ना। तो अब देखो कोस्टल रीजन्स, जैसे हिस्ट्री में आपको एक जो इंपॉर्टेंट एरिया है जहां से आजकल क्वेश्चन पूछ ले रहे हैं वो है पोर्ट्स, ठीक है, पोर्ट्स ऑन द ईस्टर्न कोस्ट, पोर्ट्स ऑन द वेस्टर्न कोस्ट, पोर्ट्स इन एंशिएंट इंडिया। मेरी बात समझ गया ना? ट्रेड एंड कॉमर्स इन एंशिएंट इंडिया, तो ये सब कुछ किससे जुड़ा हुआ है? कहीं ना कहीं कोस्टल रीजन से ही जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये मैरीटाइम ट्रेड में सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन किसका था? ठीक है, मराठास ने कोई नेवल पावर बनाई थी कि नहीं, उनकी नेवल प्रेजेंस थी कि नहीं, ठीक है, चोलास की नेवल प्रेजेंस कैसी थी, नेवल पावर सुपरियोरिटी कैसी थी, तो दिस ऑल विल डिस्कस इन द एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। यहाँ पे सिर्फ आप एक मतलब आइडिया रखो कि हाँ कोस्टल रीजन्स जो है वो भी ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए इंपॉर्टेंट है, पोर्ट्स के बारे में पढ़ना है, इंपॉर्टेंट मैरीटाइम ट्रेड रूट्स के बारे में पढ़ना है, हमें सिल्क रूट के बारे में पढ़ना है, ठीक है। अगर हम एंशिएंट इंडिया में मैरीटाइम ट्रेड करते थे तो विच सी रूट वी वेर यूजिंग, क्योंकि वो केप ऑफ गुड होप वाला तो तब नहीं पता था ना, तो विच सी रूट वेर वी वेर यूजिंग एंड विच लैंड रूट वी वेर यूजिंग। तो ये बताओ, ये बेसिक आइडिया हमें होना चाहिए कि नहीं व्हेन वी आर रीडिंग एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। और अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है तो वो क्या गलती कर दे रहे हैं? इफ दे आर आस्किंग पोर्ट्स, ठीक है, तो obviously we must have, okay, a good command over these topics. So in our classes we'll discuss now the second topic, हाँ ये तो टॉपिक हो गया, और इसके बाद जो दूसरा टॉपिक है अपना वो क्या होगा? सो दैट विल बी, द नेक्स्ट टॉपिक विल बी हियर, टॉपिक नंबर 2 विल बी, okay, topic number 2 will be sources to know Indian history, sources to know Indian history, ठीक है, इंडियन हिस्ट्री को जानने के सोर्सेस क्या है, तो इस पे भी हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, बट इस डिस्कशन को कल के लिए शेड्यूल करते हैं, तो दैट विल बी अ फ्रेश टॉपिक, ठीक है ना। टुमारो विल डू दिस डिस्कशन, सोर्सेस टू नो द इंडियन हिस्ट्री, तो आई विल गिव यू अ ब्रीफ आउटलाइन, ठीक है, और जैसे जैसे हम टॉपिक में एंटर करते जाएंगे इसमें कंटेंट जो है ना वो एनरिच होता जाएगा, ठीक है ना। चलिए, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।